on record, so you guys have you can come back to it whenever you want. Okay. चलिए दोस्तों, let's start with the warm up. Start with the smallest of the joint, first the thumb and then the fingers 10 times. Then make a fist and rotation 10 times. Reverse. Hands open, elbows. Reverse. Open and close. One to your right, to your left. Palm open towards the sky, circumduction. Big inhale and go for it. 10 clockwise, a little faster, dosto. Elbow straight, don't bend it, don't lose it, okay? Try to lengthen your hands, lengthen your spine all the way. And reverse. Neck rotation. Reverse. Clockwise, anti-clockwise, aim for three each side. Up and down. Tilt, three each side. Press and hold. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and one side change. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and one. That's it out. Relax. Look left and look right three times. Now look left, look down and up. Look right, look down and up. All right. Protraction, retraction. Shoulder rotation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ears touching the shoulders, ear touching the ears. In rotation. And reverse. We go for the spine. Five basic movements of the spine, dosto. Forward bending, back bending, side bending, twisting, and lengthening of the spine. ठीक है? So सबसे पहले small squat, big inhale, lengthen your spine. Aim for 3V. Big inhale, lengthen your spine. All right. Now hands on your hip, forward bend. Try to keep your spine straight and all the way down. Yeah. Engage your glute, ribcage lift all the way back. Glute engage also. This is level one. Level two. Level three. Again, forward bend and back bend. Forward bend and back bend. Let's aim for six more. Six. Engage knee, ribcage towards the sky. Shoulder pull down if you can. Go for it. Steps. Very nice. Forward. And bend करते हो बॉडी वेट टोस पे रखेंगे. वापस जाओ. Forward, body weight on your toes and go all the way down, spine straight, beautiful, and go back. चलिए और करेंगे तो big inhale, spine straight, all the way down. You can keep your hands on the floor or keep your hands locked and hold for 10. Body weight on your toes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1.
ये जो ग्लूट बम टाइट करेंगे, एकदम स्क्वीज करेंगे, हाथ से सपोर्ट करेंगे, रिप केज लिफ्ट करेंगे ऑल द वे डाउन एंड होल्ड फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Stand up, open your legs. Now open your left leg towards the left side and stretch. 6, 5, 4, 3. Try to touch your left shoulder to the knee. Left shoulder to the knee, okay? 3, 2, 1, and hold. 10, 9, hold it, hold it, hold it. 8, 7, very good. Lengthen your arms. पूरा एल्बो को स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर कान के पीछे रहेगा, ठीक है? 3, 2, and 1. दोस्तों, it's important that you learn to do the stretches right, okay? It's very important. So when you go, open your leg, reach, एल्बो बिल्कुल सीधा रहेगा और ऊपर की तरफ देखना है आपको, आगे नहीं आना चाहिए हाथ आपका, पीछे रहना चाहिए, ठीक है? चलिए, गो अगेन टू द अदर साइड। 6, 5, डोंट बेंड इट जस्ट ना, दोनों लेग स्ट्रेट रखो। 4, 3। दोस्तों, गोल ये है कि आप साइड स्ट्रेचेस यहाँ पे स्पाइन एंड साइड ओब्लिस, यहाँ पे स्ट्रेच फील होना चाहिए। बेंड करते हो लूज हो जाता है। स्ट्रेट। 3, 2, चलिए होल्ड करेंगे सब जने एक साथ। 3, 2, 1 एंड होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Last stretch for the spine is the twisting one shoulder distance from the wall. Rotate, use both the hands on the wall and go for a push up. Turn. 2, 3, 4. Let's go for it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Farah, I can't see your video. So you can see your video. 7. Farah, I can see you from a different. I mean, you have been from two different system, I guess. Okay, cool. Keep going, keep going, keep going. 10, 9. Keep going, Farah. 8. Survi, I can't see you. Fix your video. 4, 3, 2. चलिए होल्ड करेंगे एवरी। पिक योर साइड एंड होल्ड फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Turn over to the other side and hold. And 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Chale, last stretch for the spine. This is called spine wave using the wall. Bend your elbows, nose towards the wall, then upper body towards the wall, then rib cage, then lower belly, then hip and knee, like a wave. We go for 8 to 10. Shoulder roll back, chest open, one vertebra at a time. And we reverse as well. So from knee to thigh to lower back to belly to chest to shoulders. Let's go for it. Aim for 6 to 8. Very good. Very good. Surbi, I can see you from this angle. Good job. Nicely done. चलिए, लेग स्विंग एंड लेग ड्राइव। दोनों हाथ वॉल पे रखेंगे लाइक दिस, बोथ द टोज फेसिंग द वॉल। लेग स्विंग, लेग ड्राइव। फिक्स ईच लेग, स्विंग बोथ द साइड दोस्तों। ब्यूटीफुल। Once you finish, come back for the toes. Keep your toes next to your thumb. So right leg next to your left thumb. Roll it and press it here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. My nails are on the floor, dosto. And 6. And hold 10,
All the weight on the right leg. All the weight on the right leg and hold. 10, 9, 8, 7। अरे राजेश जी, टोस को रोल रखना है। नहीं तो ऐसे ऐसे रखने में तो कोई पता ही नहीं चलेगा। यहाँ यहाँ कोई वेट ही नहीं है। ये ऐसे रखना है, राइट। स्विच करेंगे दोस्तों। कालू, गो। ध्यान से देखिए दोस्तों, वापस एक बार। टोस को रोल कर ऐसे, फिर पूरा वेट इस लेग पे शिफ्ट करेंगे। आपको यहाँ पे पेन फील होगा और स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। एम फॉर 6 दोस्तों, लेट्स गो। चलिए 6। यस, नाउ यू आर डूइंग इट फाइन। 5, 4, बैक एंड फोर्थ, कीप इट डायनामिक। 3, और ऊपर लो विनीता। 1, एंड होल्ड। पूरा वेट लेफ्ट लेग पे, चलो पूरा वेट लेफ्ट लेग पे जितना ले सकते हो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कम बैक दोस्तों। All right, let's go for shoulder opening. Three basic stretches, starting from the wall. You want to do some downward dog? All right, watch it दोस्तों। फर्स्ट स्ट्रेच ऑफ द डे। हाथ जितना ऊपर हो सकता है ऊपर रखेंगे। स्टे अ लिटिल क्लोजर टू द वॉल। पेल्विक ओपन करते हुए चेस्ट को वॉल की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। एंड यू कंटिन्यू टू स्लाइड टू गो डीप, ठीक है। कंटिन्यू टू स्लाइड टू गो डीप। ज्यादा दूर नहीं रहेंगे, नहीं तो हिप वॉल की तरफ जाने लगेगा सर। दिस इज नॉट अ गुड वन, ओके। स्टे क्लोज। टेक द हिप बैक एंड अपर बॉडी ऑन द वॉल। नीज बेंड नहीं होंगे दोस्तों। आप चिन टच नहीं करेंगे। गुरप्रीत, थोड़ा एक स्टेप आगे आओ। सुरभि, अच्छा कर रहे हो। दोनों हाथ को स्लाइड करो और ऊपर की तरफ देखो, छत पे। नो बडी टचेस द चिन ऑन द फ्लोर। आपका चिन टच नहीं होना चाहिए दोस्तों। अपर बॉडी टच करो, आर्म पिट पे गोल करो। चले 10, बैक एंड फोर्थ डायनामिक। फरा, हिप आगे जा रहा है, हिप बॉल की तरफ नहीं जाएगा, फोकस करो। हिप पीछे जाएगा, अपर बॉडी वॉल की तरफ जाएगी। 5, नीचे आओ, नीचे आओ, वेरी गुड। राजेश जी, बैक एंड फोर्थ, स्टे डायनामिक। दोस्तों कोई भी होल्ड नहीं करेगा। स्टे डायनामिक। 6, नीज बेंड नहीं जैसन। 7, 8, 9। हाथ नीचे लो फरा, हिप पीछे जाने दो, हिप अवे फ्रॉम द वॉल फरा। चले 10 इन होल्ड। फरा गलत हो रहा है। 10, 9, हिप अवे फ्रॉम द वॉल। आप फरा, यू आर नॉट लिसनिंग। आई एम सेइंग हिप अवे फ्रॉम द वॉल। आप पाँव पीछे लेके जा रहे हो, फुट आगे लो। वन स्टेप क्लोजर टू द वॉल। मोर, मोर, मोर। हिप दूर लेके जाओ, अपर बॉडी वॉल पे रेस्ट करो। एवरीवन स्टे देयर, स्टे देयर, स्टे देयर, स्टे देयर। वेरी गुड। अभी हाथ को स्लाइड करो, अपर बॉडी को रेस्ट करो और होल्ड करो। हिप दूर जाने दो वॉल से। अपर बॉडी को वॉल पे रखो और स्लाइड करो। यस गुरप्रीत, गुड ट्राई। चलिए सब जने ऊपर देखेंगे। 5, 4, छत की तरफ। 3, नीज लॉक विनीता। 2 एंड 1, रिलैक्स। ब्यूटीफुल। स्ट्रेच नंबर 2 दोस्तों। हैंड्स इन लाइन, शोल्डर। हैंड्स इन लाइन विद द शोल्डर। ये वन स्टेप पीछे जाएंगे। सब जने ध्यान से देखो, पेल्विक ऐसा नहीं रहेगा। हंच करके रखेंगे, ठीक है। कोई ओपन नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड इंटीरियर पेल्विक टिल्ट। दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर। ये कैट एंड काउ के जैसा भी देख सकते हैं अपन, ठीक है। हमको यहां नहीं रहना है, हमको यहां रहना है। दिस इज काउ, दिस इज कैट। हमको कैट में रहना है, ठीक है। तो पोस्टीरियर टाइट, ग्लूट इंगेज, हैंड इन लाइन विद द शोल्डर, एंड देन यू ओपन योर शोल्डर फर्स्ट, एंड देन यू गो टुवर्ड्स द वॉल। द गोल इज टू टच द क्राउन ऑफ द हेड ऑन द वॉल। Hands close to each other. Aim for 10. And then the hold. Don't bend the elbow, दोस्तों. Let it come on the shoulder. Shoulder पे stretch आना चाहिए. Look down. Look down, Nisha. Look down. And head towards the wall. Yes. गुरप्रीत अच्छा कर रहे हैं। स्वीटी, हाथ थोड़ा पास में रखो। जितना हाथ ओपन रखोगे उतना इजी होगा, जितना हाथ क्लोज रखोगे उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। चलिए 10 स्विंग्स। 9, हेड टच करके दिखाओ। सुरभि, पहले शोल्डर को सीधा रखो। 8, 7, 6, 5, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, कोई भी होल्ड मत करो। 4, 3, 2, 1 एंड होल्ड। 10, 9, 8, 7।
Sir, can't hear you. Sir, audible नहीं हो आप. कैन यू हियर मी नाउ? ध्यान से देखो निशा, यू आर डूइंग गुड बट द हेड इज नॉट टचिंग, सो थोड़ा सा और पुश करने की जरूरत है। एल्बो स्ट्रेट रख के वॉल टच करने की कोशिश करेंगे, क्राउन ऑफ द हेड, ठीक है। देन सुरभि, शोल्डर और खोलो, एक स्टेप और पीछे लो, शोल्डर पूरा खुलेगा, फिर हेड को वॉल की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। स्ट्रेच अच्छे से लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो हैंड स्टैंड ठीक से नहीं आएगा। आपके साथ भी केस वही है, शोल्डर और खोलो, हेड को वॉल की तरफ लेके जाओ, हाथ दोनों हाथ के बीच में गैप भी बहुत ज्यादा है। सी, इफ योर शोल्डर्स आर टाइट यू कैन नॉट डू हैंड स्टैंड स्ट्रेट लाइन, शोल्डर स्टिफ हो जाएंगे आपके, ठीक है। विनीता अच्छा कर रहे हो बट हाथ हिप की लाइन में दिख रहा है, हाथ को शोल्डर की लाइन में रखेंगे, ठीक है। सेम स्वीति, आपका भी सेम है, अच्छा कर रहे हो बट हाथ हिप की लाइन में है, हमको ऊपर रखने। गुरप्रीत, नॉट बैड, गुरप्रीत और निशा दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो बट दोनों फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम द वॉल है, ठीक है। और ओपन करना है हमको। राजेश जी सेम, आपका भी सेम है, अच्छा ओपनिंग है लेकिन हेड को टच करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार फिर से लगा के दिखाइए सब जने, एक बार फिर से लगाएंगे। जस्ट यू डूइंग गुड, यू डिड गुड, हैंड्स क्लोज भी है, हेड फ्लोर की तरफ रखना, हेड टच करने की कोशिश करनी, एल्बो सीधा रखना, इस एंगल से पता नहीं चलता है, एल्बो बेंड नहीं होगा, ठीक है। सब जने एल्बो स्ट्रांग बना के रखेंगे। चलिए 3, 2, 1 एंड स्ट्रेच इट। 20, 19, 18, पहले पूरा शोल्डर खोलो फ्लोर की तरफ, फिर हेड को लेके जाओ वॉल की तरफ। 18, 17, 16, शोल्डर पे स्ट्रेच आना चाहिए दोस्तों, नीज लॉक करो स्वीटी। 10, 9, हाथ नीचे लो, हाथ शोल्डर की लाइन में बोले थे मैंने, छत छू रहे हैं आपके। शोल्डर की लाइन कहाँ होती है स्वीति? सीधा खड़े रहो, सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो। और शोल्डर की लाइन कहाँ होती है? बस अब हाथ नहीं हटाना, शोल्डर ओपन करो और वॉल के टच करो। चलिए 6, 5, अब जाओ आप वॉल पे। 4, 3, चलो सुरभि खोल के दिखाओ, शोल्डर खोलो खोलो खोलो, अब वॉल की तरफ जाओ। वेरी गुड। 2 एंड 1, मच बेटर। फराज, सुरभि पिछले वाले राउंड से बेहतर लगाया, सुंदर। चलिए दोस्तों एक और स्ट्रेच लगाएंगे शोल्डर का। हैंड्स इन लाइन विद द हिप, हैंड्स इन लाइन विद द हिप, हाथ नहीं मूव करेंगे। एक स्टेप पीछे लिया, एंटीरियर की जगह पोस्टीरियर में रहेंगे, ठीक है। ग्लूट इंगेज करके रखेंगे, पूरा गोल शोल्डर पे, आर्म पिच को फ्लोर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, आर्म पिच फ्लोर की तरफ, ठीक है। 7, 8, 9, 10, दोनों आर्म पिच पे ध्यान दो, यहां पे स्ट्रेच बनना चाहिए आपका, ठीक है। थोरासिक ओपन करना है हमको। चलिए सब जने, 3, 2, 1, लेट्स गो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, स्वीटी बहुत बढ़िया। 3, 2, सब जने होल्ड करेंगे। चलिए हाथ से प्रेस कीजिए, हाथ से प्रेस कीजिए जैसे पुशअप में प्रेस करते हैं वॉल पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, नीज लॉक फरा। 3, 2 एंड 1, रिलैक्स। सब ने एकदम बढ़िया लगाए, नो करेक्शन। आप लोगों के लिए एक चैलेंज है दोस्तों, यहीं से आप पांव पीछे लेंगे, जब आप पांव पीछे लेंगे हाथ से प्रेस और करना पड़ेगा, ये एग्जैक्ट फीलिंग आपको देगा जब आप हैंड स्टैंड लगाते हैं, ठीक है। तो ये आगा हो गया आपका शोल्डर ओपनिंग, ये आपका शोल्डर ओपनिंग हो गया। अब आप जब पीछे जाओगे आपको हाथ से प्रेस करना पड़ेगा वॉल पे, जितना पीछे उतना डिफिकल्ट, ठीक है। ऐसे, एंड दिस विल गिव यू एग्जैक्ट फीलिंग जो आपको हैंड स्टैंड में होल्ड करते समय फील हो नहीं है, ठीक है। जितना पीछे उतना अच्छा है। लुक टुवर्ड्स द वॉल इफ यू कैन, और लुक डाउन। शोल्डर ऊपर नहीं जाएगा, पहले शोल्डर ओपन करेंगे फिर वॉक करेंगे, ठीक है। मैं टाइमर दूंगा सबके लिए। गुरप्रीत वेट करो, चलो स्ट्रेच फर्स्ट, पहले शोल्डर खोलो पूरे, फिर पांव से जितना वॉक कर सकते हो वॉक करो। आपके हाथ पे प्रेशर बढ़ेगा, उससे प्रेस करते रहो फुल फुल स्ट्रेंथ, ठीक है। 3, 2, 1, राजेश जी पीछे आओ, और पीछे आओ, पांव से पीछे आओ, बहुत बहुत पीछे आओ। गुरप्रीत बहुत अच्छा लगा रहे हो, और पीछे आओ, अपना मैक्सिमम पीछे आओ। चलो 5 सेकेंड। निशा हाथ बहुत ऊपर है, हिप की लाइन में हाथ बोले थे। 15, गो, वापस जाओ वापस जाओ, निशा फिर से ट्राई करो। स्टे विथ मी दोस्तों। 20, 10 मोर सेकेंड। 5, 4, 3, 2 एंड 1, रिलैक्स।
किस किस को हाथ से प्रेशर फील हुआ, किस किस को प्रेशर फील हुआ, समझ आया? ये एग्जैक्ट टेंशन आपको हैंडस्टैंड में फील होगा, ठीक है? आपको यहां से एक्सपीरियंस होगा हाउ इट फील्स लाइक टू बी इन हैंडस्टैंड, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, लेट्स गो फॉर द कोर। दिस इज माय फेवरेट पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंटेंस पार्ट ऑफ द क्लास, ठीक है? वी ऑल नीड टू ट्रेन आवर कोर एवरी सिंगल डे, ठीक है? 20 reps 5 एक्सरसाइजेस, ठीक है? 20 reps 5 एक्सरसाइजेस आप अपनी स्पीड पे लगाएंगे। मैं आपको इजी वर्जन बताऊंगा, मैं आपको डिफिकल्ट वर्जन बताऊंगा। यू पिक द वर्जन दैट फील्स गुड टू यू। गोल ये है कि आप कम से कम ब्रेक में 100 reps लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए ध्यान से देखिए। फर्स्ट एक्सरसाइज, हाथ में ब्लॉक लग सकते हैं, बिना ब्लॉक के भी लगा सकते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिए। इजी वन, नीज एंड शोल्डर टुगेदर, लेग बेंड रहे, नीज एंड शोल्डर टुगेदर। डिफिकल्ट वर्जन, leg straight, hand straight, okay? चलिए let's aim for 20. Take position. 5, 4, 3, 2, and 1. Let's go. 20, 90, 80, 70. मेरी स्पीड में कोशिश कीजिए। 70, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Beautiful. सबका डन? थम्स अप दिखाओ सब जने। 20 लगाए, सबके 20 मेरी स्पीड में। चलिए नेक्स्ट 20 देखेंगे। आप hands touching the shoulder, touching the knees, okay? 1, knee should touch the shoulder. 2, let's go. 1, 2, 3, 4, मेरी स्पीड पे कोशिश कीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 last. Beautiful. Thumbs up, everyone is good. I'm sure it's burning now. ध्यान से देखिए नेक्स्ट वन, लेग रेजेस। लेग रेजेस, ठीक है? चलिए, यू कैन होल्ड द ब्लॉक फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट, यू नो? चलिए 3, 2, 1, लेट्स गो। 20, 90, 80, 17, 60, 15, 40, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, last. रिलैक्स। चलिए साइड क्रंचेस लगाएंगे, ध्यान से देखिए। लास्ट टू दोस्तों, आई नो यू आर टायर्ड, स्टे विथ मी, लास्ट टू। बोथ द हैंड्स टू योर राइट, बोथ द हैंड्स टू योर लेफ्ट। चलिए 10 10 ईच साइड। 3, 2, 1, लेट्स गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
Last. And relax. चलिए दोस्तों, लास्ट एक्सरसाइज. We need both the blocks for this one. हाथ पीछे रखेंगे, it's too easy. Hands in line with the hip. It's all good. कोशिश कीजिए नीज के बाहर रखने के हाथ को, ठीक है? You can go one leg. You can go both the legs. ठीक है? 20 of these, last 20, then we relax. चलिए. Take position 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. Take a small break, दोस्तों. Sit on your shin. Inhale and exhale. सर आप जैसे स्ट्रेट रहते वैसे स्ट्रेट नहीं रह पाती, मैं तो ऐसे बैक जा रही थी. I saw you doing it. You're not doing bad. This is also a good version only that you're doing. But goal ये है कि हम upper body को stable रखें. केवल lower body को move करें. Makes you feel more intense. Okay? हाथ के नीचे ब्लॉक रखो, हाथ से प्रेस करो. Don't let your upper body move. एक चीज और देख सीखिए दोस्तों. हंच करना है. स्पाइन को हंच करना है, ठीक है? शोल्डर आगे रखना है हिप की लाइन में या आगे हिप से, ठीक है? That's the spot for L shape. It's a difficult one, I know. Find your spot, upper body here, and then go for maximum result. ठीक है? Much better, sweetie. It's more intense, right? Very good. चलिए दोस्तों, cat and cow लगाएंगे. Do a little stretches here. Feel relaxed. Cat and cow. Shoulder rotation. Clockwise, anti-clockwise. Rib cage. Clockwise, anti-clockwise. Anterior and posterior. Only movement from the pelvic दोस्तों, केवल pelvic move करेंगे. ठीक है? चलिए, shoulder rotation ध्यान से देखिए. This one is for the rest दोस्तों. Shoulder rotation, elbow lock. Elbows open and lock. Elbows open and lock, and then rotation. Clockwise, anti-clockwise. तीन स्ट्रेचेस है जो आपको डेली करने ही चाहिए फॉर द रेस्ट. ठीक है? स्ट्रेच नंबर 1 रोटेशन. स्ट्रेच नंबर 2 फिंगर फेसिंग द नी. Elbows open and lock. You can go one arm at a time. If you can go both the arms. Here. Finger facing the knee. If you can, fist. 20 times. 20 times. ऐसे नहीं रखो एल्बो, ध्यान से देखो कैमरे के सामने. ऐसे एल्बो नहीं चाहिए. Open and lock. Open your elbows and lock. And then go for fist. Very good. Stretch number 3. Press your fingers and lift your palm up. Palm up. 10 of these. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and fold. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Sit into your squat दोस्तों. Hold your wrist with the other arm from your index finger and the thumb. Okay? Then first the thumb, then the fingers, and relax. Clockwise and anti-clockwise. Side change. एक बार फिर से देखेंगे. Hold your wrist from the other arm, index finger and the thumb. Hold it from the joint only. Try to hold it from the joint. Then the thumb, then the fingers, and relax. Beautiful दोस्तों. चलिए, we go for the hip mobility from here. ध्यान से देखिए. Stretch number 1. Open your legs as wide as you can.
as wide as you can, as wide as you can. You can keep your hands on the floor. If you can keep your forearms on the floor. Open your hands and see if you can touch your forehead on the floor. 1, 2. Nobody lifts the heels. Nobody lifts the heel. Okay? Heels lift नहीं होंगे. हाथ को ऐसे slide करो, forehead touch करो. If this is easy, दोनों हाथ को ऐसे पीछे, दोनों हाथ को ऐसे पीछे रखो and try to lift the forehead. Shut. 6, 5, 4, 3, 2, beautiful, and 1. Another challenge for you guys. Legs open, shoulder आगे लेके आएंगे. Then go one hand from outside. Then the second hand goes from outside. Then see if you can lock it. Right. Hold it for 10 counts if you can. Let's see. Give it a go. If it's not coming, just give your maximum. One elbow, second elbow, and hold it. Hold the hip and hold. Stay here. Inhale and exhale. 10, 9, 8, 7, 6. Very good. Very good, Vian. Keep trying. 4, 3, 2, and 1. Rest it out. Relax. Chale, watch me for the next one. It's called 90-90. Legs open, knees towards the sky. Both the legs, right? Both the legs left. 5 each side. Then try without the hands. 3 each side. Then try without moving the upper body. So hands straight, don't move the upper body. Only move the legs. Only move the legs. No movement from the shoulder. Again, 3 each side. Alright, hands behind again. Both the knees towards the sky, one leg. 5, 4, 3, 2, 1. Side change. 5, 4, 3, 2, and 1. Very good. Both the legs inside and outside. Internal and external. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sweetie, legs are too close to the hip here. Keep your legs a little away. Foot a little away from the hip. Let's go, everyone. Internal rotation of the knees and hold. Chalo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. External rotation of the hip and hold. Chalo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Rest it out, relax, dosto. Watch me for the next one. We'll go for the frog. Everyone will show me from the side angle, dosto. This is your crawl position. यहाँ से anterior and posterior. Anterior and posterior. If this is coming nice, knees open, foot open. Anterior and posterior. Still coming. Nice and easy. Open and open. You have to hold where this movement feels difficult but doable. Okay? I don't want you to go here and stuck and the movement is not coming. The hip is not moving at all. I want you to try this. Those who can go all the way, rest the hip and able to do this. Right? Let's see. We'll use wall block as well if you can. Toes or open karo just. Toes open, sweetie. Surbi, toes open. आपका पांव ध्यान से देखिए दोस्तों. सब जने कैमरे में देखेंगे. गुरप्रीत बहुत अच्छा लगा रहे. देखो ध्यान से. नी और हील एक लाइन में. नी और हील एक लाइन में. गुरप्रीत एंटीरियर पोस्टीरियर, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं. एंटीरियर पोस्टीरियर दिखाओ. पेल्विक मूव करो. पेल्विक मूव करो. पेल्विक अभी आप स्पाइन मूव कर रहे हो. पेल्विक नहीं आ रहा है. पेल्विक नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है. देखो आप क्या कर रहे हो. ध्यान से देखिए दोस्तों. हमको पकड़ना पड़ेगा मूवमेंट कहां से आ रहा है. ऐसे
Just can't hear. आप ये कर रहे हो, ये आवाज नहीं आ हाँ, रही. स्पाइन मूव हो रहा है, थोरासिक स्पून मूव हो रहा है, शोल्डर अप एंड डाउन कर रहे हो. मैं आपको ये बोल रहा हूँ, पेल्विक मूवमेंट, पेल्विक मूवमेंट, पेल्विक मूवमेंट. ठीक है, सब जने ध्यान से देखो, यहाँ नहीं रखो, पाँव को ओपन करो, पाँव ओपन करो ऐसे, एंड गो. आप में से कोई है जो पूरा लेग ओपन कर पा रहा है फ्रॉग में? एनीवन, एनीवन, एनीवन? कोई है जिसका आ रहा है? हिप पीछे रखेंगे स्वीटी, नीज और हिप एक लाइन में. फरा अभी ठीक हो रहा है, जश्न अभी ठीक हो रहा है. अभी भी आप बेली पे ध्यान दे रहे हो, जश्न पेल्विक पे ध्यान नहीं दे रहे हो. पेल्विक मूव करो, ग्लूट से एंगेज करो. निशा बहुत बढ़िया, सब जने प्लीज देखो एक बार. निशा पोस्टीरियर और टाइट करो, हाँ, यस, रिलीज, रिलीज, एंटीरियर रिलीज, वेरी गुड. ध्यान से देखो सब जने, केवल पेल्विक मूव कर रहा है, दिख रहा है? ये कंट्रोल आपका सबका आना चाहिए. इसको आइसोलेशन बोलते हैं. जब आप पेल्विक मूव करो, केवल पेल्विक मूव होना चाहिए. ये बहुत जरूरी है हैंडस्टैंड में. राजेश जी पोस्टीरियर अच्छा है, लेकिन और स्क्वीज टाइट करो, स्क्वीज टाइट. वेरी गुड. चलिए सब जने, 5 4 3. चलो विनीता, मैंने बोला नहीं वापस आने को. फरा, मैंने वापस आने को नहीं बोला, गो बैक. 2. चलिए एंटीरियर एंड होल्ड. सब जने पेल्विक ओपन करो, बेली टुवर्ड्स द वॉल लो एंड होल्ड करो. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. पोस्टीरियर टाइट एंड होल्ड. एकदम स्क्वीज करो ग्लूट को, एकदम टाइट रखो. वेरी गुड. 10 9 8. गुरप्रीत और ट्राई करो, और टाइट होगा. 7. फरा और टाइट होगा, अपने नेवल पॉइंट से खींचो. स्वीति और टाइट होगा. 5 4. होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो. 3 2 एंड 1. रिलैक्स. बहुत बढ़िया है दोस्तों. चलिए मैं बताता हूँ किस किस का एकदम अच्छा आ रहा है. आप सबने लगाया करेक्ट, बट कौन किस किस का एकदम आर्च चला गया? ध्यान से देखो, हमको ये चाहिए कि आपका ये आर्च हंज हो जाना चाहिए. दिख रहा है? जब आप स्क्वीज करते हैं, ये आर्च हंज हो जाना चाहिए. निशा का अच्छे से आ रहा है. सुरभि दिख रहा है? अभी भी थोड़ा सा आर्च है, ये छोटा सा आर्च बनता है, राइट? हमको हंज करना है और अच्छे से. राजेश जी अच्छा आ रहा है, बट ये नीचे आते समय दिख रहा है हल्का सा बच रहा है, छोटा सा, बहुत, इतना बहुत बारीक सा, 2-3%. फरा अच्छा है, बट मुझे लगता है नीज के बीच में गैप अभी और आना है. नीज बहुत पास में है अभी, राइट? विनीता, दिस इज नॉट अ गुड एंगल. यू बीन प्रैक्टिसिंग विद अस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, यू शुड गिव मी अ गुड एंगल. हाउ कैन आई चेक फ्रॉम दिस एंगल? किसको पता चलेगा क्या लगाया, राइट? जस्ट अच्छा है, अच्छा है. देखिए दोस्तों, एकदम स्पाइन स्ट्रेट दिख रहा है हमको. हैंडस्टैंड में स्पाइन स्ट्रेट चाहिए, राइट? दिस इज द प्रैक्टिस फॉर दैट. ये एकदम सीधा दिख रहा है, ठीक है, सुंदर है. स्वीटी अच्छा है, बट थोड़ा सा कर्व दिख रहा है, देखो लोअर बैक में छोटा सा. इसको और नेवल पॉइंट से, नेवल पॉइंट से और खींचेंगे तो ये कर्व बनने लगेगा, नहीं तो स्ट्रेट स्पाइन भी चलेगा. मिनिमम स्ट्रेट, कर्व आ जाए तो और अच्छा है, हंज हो जाए तो और अच्छा है. किसी का बचा है, किसी का बचा है. गुरप्रीत, वेरी गुड. बट मुझे लगता है गुरप्रीत, अभी भी आप स्पाइन से, यहाँ थोरासिक से ज्यादा खींच रहे हो, यहाँ से कम आ रहा है, राइट? आपको यहाँ से खींचना पड़ेगा. छोटा सा कर्व बचा है, बट आप यहाँ से खींचोगे तो स्ट्रेट हो जाएगा वो. आपका ध्यान यहाँ ज्यादा है. चलिए, सबको समझ में आया? समझ में आया सबको? इसी को थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे दोस्तों. अभी हम लोगों ने नीज बेंड करके रखे थे, अब लेग स्ट्रेट रख के ट्राई करोगे. ध्यान से देखो, स्टैंडिंग पोजीशन चाहिए तो मैट हटा सकते हैं टू हैव अ बेटर ग्रिप. ध्यान से देखिए, हैंड्स ऑन द फ्लोर, लेग थोड़े ओपन किए, स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे. देखिए मेरा स्पाइन एकदम सीधा है, ठीक है? यहाँ से एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, यहाँ पे अच्छे से आएगा. आप लेग ओपन करोगे, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर. नीचे आते जाओ, जहां तक आपका ये मूवमेंट चालू है आप नीचे आते जाओ. ऑल द वे नीचे आके भी आप यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर, ये मूवमेंट आपका चलते रहना चाहिए, ठीक है? चलिए कोशिश कीजिए स्टैंडिंग पोजीशन से वहीं तक जाइए जहां तक आपका ये मूवमेंट चल रहा है, ठीक है? चलिए सब जने साइड एंगल से दिखाएंगे. स्टैंडिंग पोजीशन, आप हिप को वॉल पे रेस्ट कर सकते हो. गुरप्रीत, हिप को और हील को वॉल पे रखो. ध्यान से देखिए दोस्तों, जिनको लाइन मेंटेन करने में डिफिकल्टी होगी वो हिप को वॉल पे रखो. एंटीरियर पोस्टीरियर करते रहो, नीचे आते जाओ. वॉल विल हेल्प यू स्टे अलाइंड, हिप आगे पीछे नहीं होगा. निशा अच्छा है, लेग ओपन करो. चलो आ जाओ, नीचे आओ, नीचे आओ.
हाँ, कोशिश करो, एंटीरियर पोस्टीरियर चल रहा है यहाँ पे निशा, आ रहा है, अच्छा आ रहा है, चलो हिप को फ्लोर पे रखने की कोशिश करो, फ्लोर पे रखो, हाँ पीछे चला गया, वहीं पे करो, वहीं पे करो जहां आपका बेस्ट था। स्वीटी लेग ओपन करो, विनीता हिप पीछे जाएगा, देखो लाइन चेक करो, लाइन चेक करो, हिप, नी और हील एक लाइन में चाहिए दोस्तों। सुरभि आई होप यू आर डूइंग राइट, मुझे केवल अपर बॉडी दिख रही है, लोअर बॉडी नहीं दिख रही है। स्वीटी अच्छा है, मैं सुरभि से बात कर रहा हूँ। फरहा चलो हिप का मूवमेंट करके दिखाओ, ओपन करो, ओपन करो, चलो पेल्विक ओपन करो, पेल्विक ओपन एंड क्लोज। ओपन क्या हुआ जब आप पेल्विक ओपन करते हो, इसको अगर आपको एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं याद रहता है, इसको ऐसे समझो आप, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ठीक है, ओपन किया क्लोज किया, ओपन किया क्लोज किया, चलो कोशिश करो, ओपन करो फरहा, जश्न अच्छा आ रहा है, फरहा का चला गया शायद। चलिए सब जने मेरे काउंट पे एंटीरियर पे होल्ड करेंगे, ओपन करके होल्ड करेंगे सब जने, 5 4 3 2 1, एंटीरियर एंड होल्ड। स्वीटी बहुत अच्छा कर रहे हो, सामने देखो, एंटीरियर एंड होल्ड। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2, पोस्टीरियर एंड होल्ड, 10 9, जिन्होंने एंटीरियर किया पोस्टीरियर कर लो, पोस्टीरियर किया एंटीरियर कर लो, 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, रेस्ट इट आउट। गुड जॉब दोस्तों, शेक योर लेग्स, शेक योर लेग्स, फ्लोर पे आ जाओ, शेक योर लेग्स, in and out, in and out, in and out, in and out। चलिए लास्ट एक्सरसाइज एंड देन वी स्टार्ट डूइंग द हैंडस्टैंड, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, दोनों ब्लॉक को ऐसे रखेंगे, दोनों ब्लॉक को ऐसे रखेंगे, वो वीडियो नहीं दिख रहा। इन लाइन, इन लाइन, सबको दिख रहा है अच्छे से, आवाज आ रही है, सब कुछ ठीक है। चलिए यहाँ पे रखेंगे, यहां से आपका एल्बो पीछे नहीं बेंड होना चाहिए, दिस इज नॉट द राइट वे। एट द सेम टाइम आपका एल्बो साइड बेंड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, दैट्स द गोल। आपका एल्बो सीधा रहेगा, शोल्डर आगे की तरफ लेके जाएंगे, हेड टच करेंगे और वापस आएंगे, ठीक है। अगर ये इजी है तो नीज को हवा में लेके ट्राई करेंगे, ठीक है। इफ यू कैन गिव मी 6 to 8 गुड reps, यू आर गुड, यू हैव गुड स्ट्रेंथ। चलो ट्राई करो, ब्लॉक लगा के सब जने ब्लॉक के साथ ही ट्राई करेंगे, सब जने अपने अपने एल्बो चेक करेंगे, थोड़े से भी एल्बो बाहर की तरफ नहीं जाएंगे, एल्बोज हिप की तरफ जाएंगे, शोल्डर आगे लेंगे आप, सब जने शोल्डर आगे जाने पे ध्यान देंगे, शोल्डर आगे लेके जाओ। हेड स्टैंड जिनको लगाना आता है, यहां से हेड स्टैंड की एंट्री जिनको समझ में आती है वैसा सोचो, हेड स्टैंड के लिए। सुरभि हाथ का जो ब्लॉक का पोजीशन है वो ठीक नहीं है, फोर आर्म के पीछे रखना है ब्लॉक, आगे नहीं। निशा पोस्टीरियर टाइट रखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पेल्विक ओपन नहीं करो, ध्यान से देखो, पोस्टीरियर रहेंगे। सब जने एक बार ब्रेक लो, ब्रेक लो, ब्रेक लो। यहाँ आए, ऐसा नहीं खोल के रखेंगे हिप को, ऐसा पोस्टीरियर में रखेंगे, ठीक है। दिस इज योर हैंड स्टैंड, दिस इज नॉट योर हैंड स्टैंड, दिस इज योर हैंड स्टैंड। सो काउ पोजीशन में आएंगे, सॉरी कैट पोजीशन में आएंगे, एंड देन वी गो फॉरवर्ड। हिप खुलना नहीं चाहिए, पकड़ के रखो हिप को, गो डाउन एंड कम बैक, ठीक है। फिर से जाएंगे, चलिए, अच्छा आ रहा है। फरा थोड़ा कैमरा नीचे करके दिखाओ प्लीज। चलिए राजेश जी लेट्स गो, राजेश जी डिफिकल्ट ट्राई करो आप, नीज हवा में रख के, अच्छा लगा रहे। चलो 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 चलो, जिनको हैंड स्टैंड में 40-60 सेकेंड का होल्ड आ रहा है वॉल पे, उनको डिफिकल्ट ट्राई करना चाहिए। विनीता अच्छा लगा रहे हो, विनीता हिप को शोल्डर के ऊपर लेके जाओ, पांव से वॉक करो, वॉक करो, हिप को जितना ऊपर ले जाओगे उतना डिफिकल्ट होगा। नाउ गो अगेन,
हाँ चलो, वेरी गुड विनीता, एम फॉर 6। जश्न दूर जाओ, जश्न हेड को दूर लेके जाओ, हाथ से कितना अवे टुवर्ड्स द बॉटल लेके जाओ। हाँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जितना आगे बढ़ोगे उतना डिफिकल्ट होगा, शोल्डर पे वेट ज्यादा फील होगा, राइट। और हिप भी खुलता है, उसको भी पकड़ के रखो। चलो सुरभि, पोस्टीरियर टाइट एंड गो। अच्छी कोशिश है, कोई बात नहीं अगर ऑल द वे नहीं जा पा रहे हो, इट्स ओके। मेक श्योर यू आर डूइंग इट राइट। आप डेली प्रैक्टिस सही तरीके से करोगे, विद इन अ वीक यू विल बी एबल टू रीच ऑल द वे। वेरी गुड फरा, अच्छा है। लास्ट 10 सेकेंड। स्वीटी, पेल्विक खुल जाता है स्वीटी। ये देखो ऊपर आते समय ऐसा पेल्विक खुल जाता है, रिटर्न आते समय पकड़ के रखो। पोस्टीरियर टाइट निशा। चलिए 5 4 3 2 एंड 1। रेस्ट इट आउट, रिलैक्स। छोटा ब्रेक दोस्तों, छोटा ब्रेक। ऑलराइट, ध्यान से देखिए दोस्तों, सम ऑफ यू are trying their handstand for the first time, so I suggest them to bring a chair or something. If they can walk, or if they can, put the legs on the wall and hold there, that's a good start. Those who already know what to do, how to do it, we're gonna go for the walk. ठीक है, ध्यान से देखिए, 2 वर्जन बताऊंगा मैं, प्रोबेबली तीसरा भी बताऊंगा जिन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। स्टार्ट करेंगे 2 वर्जन से, बिगिनर, इंटरमीडिएट, और जिनको इंटरमीडिएट अच्छे से आएगा उनके लिए एडवांस बताऊंगा मैं। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे बिगिनर वर्जन जो पहली बार ट्राई कर रहे हैं उनके लिए, चेयर को ऐसे वॉल पे रखो, सिंपल मुझे वॉक करके दिखाओ। प्लैंक पोजीशन देखो ध्यान से, हिप और शोल्डर एक लाइन में, पोस्टीरियर टाइट ऐसे खोलना नहीं है, पोस्टीरियर टाइट। यहां से ऐसे वॉक करो, वॉक करो, वॉक करो, थोड़ा लेग बेंड करोगे तो चलेगा। गोल ये है कि आप मुझे हिप को शोल्डर के ऊपर ले जाके दिखाओगे। ठीक है, यहां आना डिफिकल्ट है आपका, एंड देन वॉक बैक। ठीक है, जिनको अच्छे से आता है नीचे से वॉक करके दिखाएंगे। अगेन प्लैंक, आप ऐसे नहीं चढ़ोगे, ऐसे नहीं चढ़ोगे, ऐसे यहां से वॉक करके दिखाओ, यहां से प्लैंक पोजीशन, स्मॉल स्टेप, स्मॉल स्टेप, स्मॉल स्टेप। यहां पे आता है, यहां पे ऑल द वे जा सकते हो, ऑल द वे टच एंड वॉक बैक। स्लो एंड कंट्रोल, पूरा नीचे आओ, देखो मेरा हिप शोल्डर हील एक लाइन में, एंड फिनिश इट। ठीक है, एम फॉर 3। चलिए एम फॉर 3। निशा गलत कर रहे हो, वापस आओ, वापस आओ निशा। चलो प्लैंक लगाओ फ्लोर पे। गुरप्रीत प्लैंक लगाओ, प्लैंक। प्लैंक कैसे लगाते हैं? अभी बेबी स्टेप्स लो वॉल की तरफ, कोर इंगेज रखते हुए, सबसे छोटा स्टेप्स। हाँ, पुश करो, कोर इंगेज रखो, अभी धीरे धीरे वॉक करो। सी इट्स डिफिकल्ट नाउ, यू नीड टू लर्न टू होल्ड द कोर हियर एज यू गो अप। हाँ गुरप्रीत वॉक करो। हाँ अभी अभी डिफिकल्ट हुआ। स्वीटी ऑल द वे ऊपर जाओ, दोनों पांव ऊपर। सुरभि वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो। लेट्स गो राजेश जी, अच्छा कर रहे हो, हाथ पास में रखो। गुरप्रीत अच्छा है, टच करके दिखाओ, ऑल द वे, ऑल द वे, ऑल द वे। दोनों पाव पास में स्वीटी, दोनों पाव पास में, टोस टचिंग, टोस टचिंग। वेरी गुड, वॉक करो, वापस वॉक करो गुरप्रीत, वापस वॉक करो। स्लो एंड कंट्रोल, कोर इंगेज रखो, देखो पूरा बॉडी लीन हो गया है वॉल पे, हाथ पे वेट लो पूरा। फरा अच्छा कर रहे हो, और अंदर आओ। सुरभि मुझे अपर बॉडी थोड़ी कम दिख रही, थोड़ा कैमरा एंगल ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा टुवर्ड्स योर राइट लो। वेरी गुड विनीता, स्लो स्लो विनीता, स्लो स्लो स्लो, पकड़ के रखो, पाँव नीचे लेके आओ, कंट्रोल में, कंट्रोल में। मुझे प्लैंक लगा के दिखाओ, वॉल पे प्लैंक लगा के दिखाओ, हाथ हाथ और आगे लो, हिप और नीचे आने दो। योर शोल्डर, योर हिप, योर हील शुड बी इन वन लाइन। कोशिश करो, शोल्डर आगे लो, हिप नीचे लेके आओ, प्लैंक लगा के दिखाओ, और नीचे, हिप नीचे आने दो, हिप नीचे आने दो, शोल्डर आगे लो, दूर अवे फ्रॉम द वॉल। हाँ, और नीचे लो, शोल्डर और आगे जाएंगे, हिप और नीचे आएगा, हिप और नीचे आएगा। हाँ अब धीरे से वॉक करो फ्लोर की तरफ। अब ये परफेक्ट है, ये आपका परफेक्ट प्लैंक लगा। एंड वॉक एंड फिनिश। चलो 2 more राउंड्स। जस्ट लेट्स सी, टोटल 3 लगाने हैं दोस्तों। एम फॉर 20 to 30 seconds इन वन राउंड। जितना लास्ट स्टेप पे होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड पे ट्राई करो। जश्न बहुत अच्छा कर पा रहे हो, होल्ड करो उधर ही। जस्ट 5, लुक बिटवीन द हैंड्स एंड होल्ड। 4 3 2 एंड 1। सुरभि होल्ड, सुरभि वापस जाएंगे, फरा वापस जाएंगे। ध्यान से देखो, सुरभि और फरा आप लोगों के लिए पिक्चर है।
जश्न का, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, शी इज एबल टू गेट द हिप ऑन टॉप ऑफ द शोल्डर। हमारा गोल ये है, अगर जश्न, अगर आप यहाँ पे मुझे 10, 20, 30 सेकेंड होल्ड दिखा सकते हो, रेस्ट एल्बो शोल्डर स्पाइन एंड हिप ऑन लाइन, इन लाइन विद ईच अदर, दैट मीन्स यू आर रेडी टू डू इट ऑन द वॉल। अगर यहाँ 20, 30 सेकेंड होल्ड आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव द अपर बॉडी स्ट्रेंथ। फराह, सुरभि, हमको एक एक स्टेप और लेना है। अभी आपका हाथ थोड़ा यहाँ है तो लाइन ऐसी आती है, मैं पे चलूंगा आपका भी और आपको दिखाऊंगा। लेट्स गो फॉर इट। फराह, सुरभि, यू गो अगेन। फाइनल स्पॉट पे, ईयर टचिंग द शोल्डर एंड 10 सेकेंड होल्ड। चलो फराह, सुरभि, यू गो। जस्ट एक हाथ और अंदर लो। द रिस्ट आर नॉट अंडर द शोल्डर। यस, मच बेटर। चलिए फराह, सुरभि, 3, 2, 1, फाइंड योर स्पॉट, जितना अंदर आ सकते हो उतना, एंड होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5। थोड़ा नी बेंड करके अंदर आ सकते हो तो ट्राई करो, थोड़ा नी बेंड करो, बट एक स्टेप और अंदर लो। हाँ, वेरी गुड। होल्ड करो। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो कम बैक फराह एंड सुरभि। देखिए आप लोगों का अभी यहां पर है, ठीक है। ये देखो, ये हिप शोल्डर के ऊपर नहीं आ पा रहा है अभी, इसके लिए आपको शोल्डर ओपनिंग की जरूरत है। तो व्हाट यू आर लैकिंग राइट नाउ इज द शोल्डर ओपनिंग एंड द स्ट्रेंथ। हम लोगों का बॉडी यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग फील करता है, जहां पे अभी आपने होल्ड किया हुआ है। हमको पहले ये रेंज डेवलप करनी है, फिर यहाँ पे स्ट्रांग बनना है, ताकि यहाँ पे हम पहुंच भी पाए, एट द सेम टाइम होल्ड भी कर पाए बॉडी वेट, राइट। सो स्ट्रेंथ एंड रेंज दोनों इंप्रूव करना है। सुरभि, यू आर बेटर देन फरा, बट वी नीड मोर ओपनिंग हेयर, यू सी। आप जब चेयर की तरफ देखते हो, यू कैन ओपन अ लिटिल बेटर। जब आप हाथ की तरफ देखोगे, शोल्डर और आगे भागता है, चेयर से दूर जाता है। हमको ये एक लाइन में लेके आना है, राइट। अगेन शोल्डर ओपनिंग की जरूरत है, एंड देन यहाँ पे होल्ड आएगा। जब एक बार लाइन आने लगेगी तब होल्ड ट्राई करेंगे। जश्न, यू आर डूइंग गुड। द गोल फॉर यू इज टू होल्ड 30 सेकेंड्स here, right? 30 seconds here. Everyone else go towards the wall. पूरा वेट वॉल पे लेंगे, जो लोग वॉल पे जा पा रहे हैं, पूरा वेट वॉल पे, केवल टोस मुझे वॉल पे चाहिए आपके। पूरा वेट हाथ पे, पूरा वेट हाथ पे, केवल टोस वॉल पे रखेंगे और 30 सेकेंड का होल्ड लगाएंगे। चलिए गुरप्रीत, स्वीटी, those who can go all the way, look between the hands and hold for 30 seconds. चलिए 5, 4, स्वरा, सुरभि, फिर से ट्राई करो। 3, 2, 1, सेम थिंग, फिर से ट्राई करो एक और बार। चलिए टाइम स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। 3, 2, 1। निशा, जितना क्लोज जा सकते हो उतना क्लोज जाओ, और क्लोज जाओ। राजेश जी हाथ पास में रखो, जितना क्लोज जा सकते हो उतना क्लोज, बट डोंट लेट द बॉडी टच द वॉल, दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट। क्लोज जाना है बट बॉडी टच नहीं होनी चाहिए। दोनों टोस पास में, दोनों टोस टच रहेंगे, दोनों थम्स टच रहेंगे दोस्तों, आपके पांव के अंगूठे टच रहेंगे आपस में। 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2 एंड कम बैक। स्लोली वॉक, स्लोली वॉक, स्लोली वॉक, स्लोली वॉक, स्लोली वॉक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए सबका पिक्चर देखते हैं एक बार, किसको कहाँ करेक्शन की जरूरत है। देखिए दोस्तों, आप दूसरों का भी देखो, आपको क्लैरिटी आएगी कि कैसे क्या क्या करेक्शन आते हैं, ठीक है। देखो गुरप्रीत, हमारा स्पाइन सीधा नहीं रहता है, शोल्डर एकदम स्टेबल है, राइट। हाथ, एल्बो, शोल्डर एकदम स्ट्रांग दिख रहे हैं, बिल्कुल बेंड नहीं है। बट जैसे ही यहाँ से ऊपर जाते हैं, ऐसा फिसल पट्टी, ऐसा डायगनल होना शुरू हो जाता है, राइट। इसका मतलब क्या है, आप पेल्विक इंगेज नहीं कर पा रहे हो। आपका ये वाला जो हिस्सा है जो वॉल की तरफ जा रहा है, इसको आपको दूर लेके जाना है। जब आप इसको एंगेज करोगे, शोल्डर भी भागेगा। तो गोल क्या है, शोल्डर को वॉल की तरफ पुश करते रहना और बेली को वॉल से दूर लेके जाना, राइट। जब आप थोड़ा सा इसको पुश करोगे, थोड़ा सा इसको अवे लेके जाओगे, तो लाइन आ जाएगी बराबर, आपका अलाइनमेंट बनना शुरू हो जाएगा। चलिए देखिए सब जने देखो, ये एंगल इज मच बेटर फॉर मी टू चेक देन दिस एंगल, राइट। क्योंकि अब मुझे साइड से तो पता ही नहीं चल रहा है शोल्डर कहाँ है, हिप कहाँ है, स्पाइन कहाँ है, राइट। सो आप में से जो भी जिसके लिए पॉसिबल, आई नो सबका अरेंजमेंट अलग है, जो मुझे साइड एंगल दिखा पाएगा, आई कैन कैच यू बेटर। राजेश जी आप सुंदर लगा रहे हैं, आप हमेशा ही बढ़िया लगाते हैं। थोड़ा हाथ के बीच में गैप कम कीजिए। देखिए थोड़ा वी बनता है, देख रहा है, ये स्ट्रेट हैंड नहीं है, ये वी बन रहा है। थोड़ा हाथ पास में रखिए, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आगे की जर्नी के लिए अच्छा है, ठीक है।
पाँव के बीच में भी छोटा नहीं, सब कुछ ठीक लग रहा है, बाकी सब कुछ ठीक लग रहा है। निशा, ब्यूटीफुल जॉब, बट निशा इज स्टिल फोकसिंग ऑन टेकिंग द वेट। आप और क्लोज जा सकते हो क्या वॉल के? ये चैलेंज है आपका। जितना क्लोज जाके बिना वॉल को टच करे रह पाओगे उतना अलाइनमेंट ठीक होता जाएगा, विच इज डिफिकल्ट एट द सेम टाइम, राइट? आपका बेली बार बार टच होना शुरू हो जाता है वॉल पे, ठीक है। नेक्स्ट, फरा, हम लोगों ने देखा ही है, हमको इसको ठीक करना है धीरे धीरे। नीज बेंड करो, अंदर आओ, नीज बेंड करो, अंदर आओ, ठीक है। हिप के नीचे लेके आना है हमको, राइट? दैट्स द गोल। स्वीटी, थोड़े हाथ और प्रेस करके रखो, हल्का हल्का बैंड दिखता है, देखो आप। गुरप्रीत का और राजेश जी के हैंड में और आपके हैंड में थोड़ा सा आपको दिखेगा, हाथ से और प्रेस करना है हमको, ठीक है। हैंड के बीच का गैप थोड़ा कम रख सकते हो, दोनों पाव पास में रखो, टोस टक होना चाहिए, रोल होना चाहिए, टक। टक और रोल का डिफरेंस कौन समझता है? टक का रोल का मतलब क्या होता है, राइट? देखो ध्यान से देखो, पाँव देखो, मेरे पाँव देखो। जब मैं बोलूँ टोस टक करना है तो मैं बोल रहा हूँ आपको ये करना है। जब मैं बोलूँ टोस रोल करना है तो मतलब ये करना है। वॉल पे बात कर रहा हूँ मैं, आपके टोज रोल रहेंगे वॉल पे, टक नहीं करोगे आप, ठीक है? टोज रोल रहोगे। हमने स्ट्रेच भी इसीलिए किया था इसका, ठीक है। एवरीवन इज गुड, समझ में आ रही बात? सो टोज टक नहीं करना है, टोज रोल रखना है। और कोई बचा है? विनीता, वेरी ब्यूटीफुल विनीता, सब कुछ अच्छा है इसमें, सब कुछ अच्छा है। सब जने देखो ध्यान से, एकदम एंगल भी बहुत सुंदर है देखने के लिए, और एवरीथिंग इज लुकिंग स्ट्रेट। देखेंगे आप, पाँव भी देखो एकदम लाइक अ रॉड दिख रहा है, एकदम स्ट्रेट। सारे मसल इंगेज रखने, राइट? दैट्स द की, दैट इज द की हियर। सब कुछ ठीक है, ठीक है। चलिए अगला राउंड लगाएंगे फॉर राजेश जी, फॉर निशा, फॉर विनीता, जिनका अलाइनमेंट अच्छा आने लगा है। वॉल पे 30 सेकेंड्स का होल्ड भी अच्छा है। गुरप्रीत, थोड़ा अलाइनमेंट ठीक करना है हमको, फिर आप भी लेग रिलीज पे आओगे। अभी लेग रिलीज मत करो, अलाइनमेंट ठीक करके होल्ड करो। जश्न, यू स्टार्ट वॉकिंग ऑन द वॉल, जैसे गुरप्रीत कर रही है वॉक करने की कोशिश करो। स्वीटी, आपका साइड एंगल मिल सकता है मुझे? आई विल ट्राई सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ध्यान से देखिए अरे दोस्तों, हाथ पे जाना है। आई वॉन्ट यू टू बी 1 palm डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, 1 palm डिस्टेंस, ठीक है। फराज, सुरभि, इफ यू कैन वॉक, आपके लिए गोल क्या है मैं दोनों तीनों लेवल बताता हूँ। सबसे पहले जिन लोगों ने चेयर पे लगाया वो लोग ट्राई करो यहाँ पे ऐसा होल्ड लगा पाओ 20 to 30 सेकेंड्स, ठीक है। केवल यहाँ पे होल्ड लगा पाओ। जिनका वॉक आने लगा है लेकिन अलाइनमेंट ठीक नहीं है, वो अलाइनमेंट पे काम करो, अलाइनमेंट ठीक करो। जिनका अलाइनमेंट आ गया है वो सिंगल लेग रिलीज करो, होल्ड करो। जिनको यहाँ कंफर्टेबल लगता है वो स्विच करके दिखाओ, स्विच करके दिखाओ। जो लोग होल्ड कर पा रहे हैं वो होल्ड भी ट्राई करो, ठीक है। चलिए 3 लेवल दिखाए मैंने आपको, चलिए। मेरा डिस्टेंस हाथ से बहुत कम, मतलब वॉल से बहुत कम रहता है, एकदम वॉल के पास में 1 palm चलिए। डिस्टेंस, हर ड्रिल का अलग अलग पर्पस है। इस वाले में हमको थोड़ा दूर रहना है ताकि आप लेग रिलीज कर पाओ और पूरा वेट शोल्डर पे स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए देख पाओ। अभी मुझे ये देखना है कि जब आप लेग रिलीज करते हो अलाइनमेंट ठीक रहता है या बिगड़ जाता है, आपके लिए स्वीटी स्पेशली, ठीक है। सर एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है मेरे हाथ बहुत पास है, लेकिन फोटो में ऐसा लगता है बहुत दूर है, बट ऐसे लगता है कि बहुत नजदीक ही नहीं, है आप डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर बात कर रहे हो, डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, मेरे डिस्टेंस, हाथ। डिस्टेंस हाँ बिटवीन द हैंड्स। हाँ। आइडली आपके हाथ के बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा पकड़ो आपका नोज, ये आइडल है, इससे इतना रख लिया तो बहुत है। 4 इंचेस ओके। पकड़ लो ऐसे, 4 fingers बिटवीन द हैंड्स, इतना ही होना चाहिए। आपके हाथ यहीं होने चाहिए, यहां नहीं होने चाहिए, ठीक है। कान को टच करते हुए, ठीक है। चलिए, हाँ ये अच्छा है निशा। ध्यान से देखो दोस्तों, दिस इज ऑल्सो नाइस वे टू चेक। ऐसे ब्लॉक पकड़ लो, दिस इज अ गुड वे टू टू स्पॉट इट, राइट। ऐसे ब्लॉक के बीच का एक हाथ, दोनों हाथ के बीच में से ब्लॉक आ जाने चाहिए। एक और चीज दोस्तों, आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो सीधा दिखना चाहिए। जब आप फ्लोर पे हाथ रखोगे ये हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब जने, ध्यान से देखो। जब मैं हाथ को ऐसा रखता हूं, जो आपका नॉर्मल हैंड स्टैंड है, देखिए मेरे फिंगर सीधा नहीं है, मेरे एल्बोज भी फेसिंग ईच अदर होते हैं। जैसे ही मैं फिंगर ओपन करता हूं ऐसे और ऐसे, मेरा एल्बो कैमरे की तरफ ओपन हो जाता है, देख रहे हैं आप। सो जैसे ही आप पाम का रोटेशन चेंज करते हो वैसे आपके एल्बो खुलने लगते हैं, आपके शोल्डर लॉक होना शुरू हो जाते हैं। नहीं तो आपका शोल्डर ऐसा रहता है, राइट। हमको ऐसा रखना है,
मेक सेंस? सबको समझ में आ रही बात? ये छोटी छोटी चीजें आपके अलाइनमेंट में बहुत जरूरी है, ठीक है? चलिए गो फॉर इट, लेट्स गो। निशा, राजेश जी, विनीता, स्वीटी, कोशिश करो बिना अलाइनमेंट बिगड़े लेग रिलीज करके दिखाओ। गुरप्रीत अलाइनमेंट ठीक करो। फराह, जश्न, यस, सुरभि जी गायब है। वॉल पे वॉक करके होल्ड करने की कोशिश करो। चलिए वापस जाएंगे निशा, कोई बात नहीं। स्वीटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, साइड एंगल अच्छा है। विनीता बहुत अच्छा कर रहे हो, स्लो जाओ, स्लो जाओ, दोनों टोस को टच करने के और होल्ड करने की कोशिश करो। विनीता यूर देयर, यूर देयर। जश्न अच्छा किया, होल्ड कम आया। रिवर्स काउंट करो जश्न, 20। गुरप्रीत अलाइनमेंट अच्छा हुआ है, टोस को रोल करके दिखाओ। अलाइनमेंट ठीक है अभी, टोस को रोल करके टोस को टच करके दिखाओ। वेरी गुड निशा, थोड़ा दूर रहो वॉल से, और अच्छा कंफर्टेबल फील होगा। वन ब्लॉक डिस्टेंस इज अ गुड आइडिया, वन ब्लॉक डिस्टेंस इज अ वेरी गुड आइडिया। विनीता बहुत अच्छा लगा है। हाँ स्वीटी, हाँ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, टोस रोल करो, ग्लूट इंगेज करो स्वीटी, और इधर ही होल्ड करो। अच्छा है। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, टोस पॉइंट स्वीटी, 11, 10, ग्लूट इंगेज, 9, 8, 7, 6, 5, 4, नीज टच नहीं करो निशा, हाँ, 3, 2 एंड 1। स्वीटी बहुत अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया। फरा अच्छा टाइम स्पेंड किया, वेरी गुड, नॉट बैड। चलिए राजेश जी का देखते हैं, राजेश जी इज रेडी टू गो। राजेश जी, निशा यू आर डूइंग गुड। अरे वाह, नीचे आ गए। निशा मुझे पाँव नहीं दिखते, पता नहीं चलता है पाँव रिलीज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक से हो रहा है रिलीज नहीं हो रहा है। वेरी गुड राजेश जी, इट्स अ गुड डिस्टेंस। चलिए वन लेग रिलीज कीजिए, दोनों टोस रोल रखिए। सब जने प्लीज जो रेस्ट कर रहे हैं प्लीज कैमरे में देखे। राजेश जी इज अबाउट टू गेट हिज हैंड स्टैंड, ही जस्ट वर्किंग ऑन द बैलेंस पार्ट। टोस रोल रखिए। सब जने प्लीज चेक करो अगर आप मेरा कर्सिव देख पा रहे हो। रेस्ट, एल्बो, शोल्डर, स्पाइन, हिप, नी, हील, सब कुछ एक लाइन में, दैट्स अ गुड अलाइनमेंट, राइट? राजेश जी टोस रोल रखिए प्लीज वॉल पे, रोल रोल रोल, नेल्स ऑन द वॉल, यस। चलिए फिंगर्स पे वेट लेते हुए वन लेग रिलीज कीजिए, पूरी बॉडी को पकड़ के रखेंगे, केवल लेग रिलीज होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अभी बॉडी वेट फिंगर्स पे लीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ सेकंड लेग रिलीज कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, भरोसा रखिए। फिंगर्स पे वेट लीजिए और रिलीज कीजिए, रिलीज कीजिए। वन, कोई बात नहीं, डरो नहीं। वॉल, आपका ब्रेन वॉल पे जाता है बार बार, आप, योर ब्रेन इज टेकिंग यू बैक टू द वॉल, यू हैव टू फाइट योर ब्रेन हियर। चलो फिर से ट्राई करो। 5% एक्स्ट्रा वेट लो हाथ पे, 60% वेट हाथ पे चाहिए मुझे। 60%, 70%, 80%, 90 एंड 20 पे रिलीज होगा, 100 पे। चलो यस, स्लोली कम बैक। राजेश जी, आपका केवल पर्पस ये है कि आप बॉडी वेट को हाथ पे लेंगे, फिंगर्स पे मैक्सिमम वेट यहां पे फील करेंगे, और खुद पे भरोसा रखते हुए लेग रिलीज कर देंगे। ज्यादा सोचेंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं, ठीक है? जितना हेजिटेट करोगे उतना आपको फियर जनरेट होगा, उतना बॉडी, ब्रेन इज ट्रिकिंग यू टू द सेफर साइड, राइट? हमारा ब्रेन हमको प्रोटेक्ट करने के लिए वो नहीं चाहता आप ऐसी स्पेस में जाओ जहां आप गिरो, खुद को लग जाए, यू नो, तो वो बार बार वॉल की तरफ लेके जाता है। यू हैव टू फाइट इट आउट। चलिए कौन जाएगा? निशा, चलो फिर से ट्राई करते हैं। सब जने एक एक बार फिर से ट्राई करेंगे दोस्तों। गोल ये है, आप फोन लगा के भी अपना टाइमर रख सकते हो, आपको 30 सेकेंड वॉल पे स्पेंड करना आना ही चाहिए, ये बेसिक्स है, तभी हम नई चीजें ट्राई कर पाएंगे वॉल पे, ठीक है? सब अपना अपना फोन, जश्न, फराह, अपना अपना फोन लगाओ, 30 सेकेंड का गोल करो। आता है तो मुझे बताओ, नहीं आता है तो मैं आपको ड्रिल बताऊंगा चेयर पे। चलिए यहीं पे रुको निशा, हाथ बस यहीं पे रुको, ज्यादा अंदर नहीं आओ, अंदर नहीं आओ, दूर रुको, वो जो लाइन दिख रही है फ्लोर पे बस वहीं पे आ जाओ। वेरी गुड, चलो दूर आओ, बेली को दूर लो, वेरी गुड, ईयर टचिंग इट, हाथ से प्रेस करते रहो, वेरी गुड। चलो वन लेग रिलीज करो, मैक्सिमम वेट ऑन द फिंगर्स, मैक्सिमम वेट ऑन द फिंगर्स, और रिलीज स्लोली, स्लोली। वॉल वाले लेग को लाइट करते जाओ, लाइट करते जाओ, लाइट करो, लाइट नहीं हो रहा है, वॉल वाला लेग और लाइट करो, हाथ पे और वेट आएगा, हाँ डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ चलो रिलीज करो, रिलीज करो, सही रिलीज हो रहा है, बट वापस वॉल पे जा रहे हो, वॉल पे नहीं जाना है। रिलीज करो, फिंगर्स पे वेट लो, रिलीज करो, खुद पे भरोसा रखो। योर फिंगर्स नीड टू बी रिस्पॉन्सिव दोस्तों, राजेश जी और निशा, यू बोथ हैव इट। आपको अपने हाथ पे और भरोसा करना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि मैंने इनफ ट्रेनिंग किया है, मेरा बैलेंस आएगा, यू नो, माय फिंगर्स विल रिस्पॉन्ड। टॉक टू योर फिंगर्स, इट्स लॉक। आप में से कौन कौन न्यूरोलॉजिकल पाथवे समझता है? न्यूरोलॉजिकल पाथवे समझते हैं आप? समझते हैं?
जब हम ब्रेन होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, ब्रेन खाली होता है, हम नई नई चीजें ट्राई करके न्यूरोलॉजिकल पाथवे बनाते हैं। आपका चलना दौड़ना वो सब उसी कारण हो रहा है। तो जब आप ब्रेन से इंस्ट्रक्शंस देते हो, वो सीधे जाके वो फिंगर मूव होती है। अभी दिस इज माय न्यूरोलॉजिकल पाथवे, दिस मूवमेंट, राइट, माय ब्रेन इज गिविंग इट कमांड टू मूव दिस वे। जब आप अपसाइड डाउन जाते हो, द न्यूरोलॉजिकल पाथवेज आर मिसिंग, तभी आपको पता नहीं चलता है पाँव कहाँ है, हिप कहाँ है, हाथ कहाँ है। अपसाइड डाउन में आपको न्यूरोलॉजिकल पाथवेज फिर से बनाने पड़ेंगे। आप सब अपनी अपनी उम्र में, अपनी अपनी एज में एवरी डे ग्रो कर रहे हो। जब छोटे होते हो जल्दी सीखते हैं, जब बड़े होते इंप्रूवमेंट स्लो आता है। सो यू हैव टू बिल्ड द न्यूरोलॉजिकल पाथवेज, राइट। ठीक है, तो अगर अभी आप जा रहे हो वॉल पे और आपको डिजीनेस और ये हो रही है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल पाथवे नहीं बना है। डिफिकल्ट नहीं है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बनना शुरू होगा। मेक सेंस। छोटे बच्चे थे तब कितनी प्रैक्टिस की चलने की, किसी ने काउंट ही नहीं किया, दिन भर कोशिश करते थे तो आ गया, राइट। दैट्स हाउ यू शुड अप्रोच इट। अरे विनीता, लुक हाउ दिस इज अ मून वॉक, विनीता, लाइक अ माइकल जैक्सन मून वॉक, शो मी, लुक एट दिस, सी हाउ इजीली शी इज डूइंग। एक और चीज देखिए राजेश जी और निशा, अपर बॉडी नहीं हिल रहा है, लोअर बॉडी मूव करता है, तो अपर बॉडी नहीं हिलना चाहिए। जब तक वो अपना अपर बॉडी कंट्रोल कर पाएगी, उसको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फील होगा। अपर बॉडी अगर हिल रही है तो हमेशा आपका ब्रेन आपको ट्रिगर करेगा। अपर बॉडी पकड़ के रखो, जब लोअर बॉडी चलाओ अपर बॉडी नहीं हिलना चाहिए, उसको पकड़ के रखो, ठीक है। चलिए किसका, स्वीटी, एक बार आप दिखाओ, चलो। तो वी विल सर स्पेंड लगता है 2 कि more जैसे minutes here। हाँ स्वीटी, बेली, ऐसा लगता है कि कंट्रोल में नहीं, बेली से मैं गिर जाऊंगी ऐसा लगता आप है। नहीं जाओ जब तक आपको सेंस ऑफ कंट्रोल फील नहीं होता है, नहीं जाओ। आप क्या करो, आपका फॉर्म अच्छा है, आप लेग रिलीज करते हो, आपका अलाइनमेंट नहीं बिल्ड खराब होता है, थोड़ा वॉल से दूर रहो और वहीं पे 15 सेकंड होल्ड करो, 30 सेकंड होल्ड करो। जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना कॉन्फिडेंस फील आना शुरू होगा, राइट। चलिए, लेट्स गो। एवरीवन एल्स, विनीता, राजेश जी, मुझे होल्ड लगाने की कोशिश करेंगे आप। विनीता बहुत ही सुंदर आ रहा है आपका, अब होल्ड आना ही चाहिए। आई एम गोना कम एंड चेक योर्स वन मोर टाइम, विनीता। सर चलो मेरा बस यहीं पे रहो। गिव माई 100%, वो मेरा यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है तो। हर ब्रेक में शोल्डर ओपनिंग के ड्रिल लगाओ, हर ब्रेक में शोल्डर ओपनिंग लगाओ, शोल्डर रोटेशंस लगाओ, वॉल स्ट्रेचेस लगाओ हर रैप के बीच में। वेरी गुड स्वीटी, डोज पॉइंट, एक लेग रिलीज करो एंड टाइम स्टार्ट। चलो 15 सेकंड होल्ड करके दिखाएंगे यहाँ पे। जो वॉल वाला लेग है वो जितना लाइट फील करोगे उतना अच्छा है। तो वेट हाथ पे लो, वेट हाथ पे लो, हाथ पे और वेट आने दो, हाथ पे और वेट आने दो स्वीटी, हाथ पे और वेट आने दो। 5 4 3 2 1। अभी देखो कैसा झूल रहा है, बॉडी हिलता रहता है, राइट। दैट मीन्स यू नीड मोर स्ट्रेंथ हियर। 3 2 1, चलो रिलीज। स्टेबल रहने की कोशिश करो, मिनिमम मूवमेंट। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली कम बैक। समझ में आया स्वीटी, अभी बॉडी वॉल की तरफ ज्यादा है। ए आराम से, लगा तो नहीं? अच्छा, यू आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन अभी बॉडी हिलता है, राइट। आपने नोटिस किया, थोड़ा 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 हिलता है जैसे जितना। वॉल के नजदीक जाती हूँ तो कम हिलता है, जितना वॉल से नहीं नहीं, दूर बट ज्यादा आप हिलता है जितना मेरा। वॉल के क्लोज जाओगे उतना लेग रिलीज करना भी डिफिकल्ट होगा आपके लिए, ओके। राइट। वो स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है। जब हम शुरू शुरू में ड्रिल लगाते हैं हम स्टेबिलिटी के लिए लगाते हैं। अभी हम बैलेंस की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा वॉल से दूर रहोगे लेग रिलीज करना ईजी होता है। हमको चाहिए कि हम स्टेबली होल्ड कर पाए 30 सेकेंड्स, वन लेग इन द एयर, वन लेग ऑन द वॉल। तो आपके लिए गोल ये होना चाहिए, अगले 7 डेज में यू शुड बी स्टेबल 30 सेकेंड ऑन वन लेग, राइट। दैट शुड बी द गोल। चलिए, फराह और जश्न, मैं टाइमर लगाऊंगा, मुझे 30 सेकेंड का गोल लगा के दिखाएंगे। चलिए टेक पोजीशन, आई एम गोना पुट यू ऑन स्पॉटलाइट। चलिए एक साथ जाएंगे और एक साथ होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। चलिए 30 सेकेंड गोल है हमारा। जितना क्लोज जा सकते हो उतना क्लोज, लुक बिटवीन द हैंड्स, ईयर टचिंग द शोल्डर, कोशिश करो। 10 सेकेंड्स, पाव पास में रखो जश्न, और आप बहुत सुंदर लगा रहे हो। 15 सेकेंड्स, स्टे 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 स्टे, हाथ से प्रेस करो जश्न। 20 सेकेंड्स, हाथ से और प्रेस होगा जश्न, हाथ से और प्रेस होगा, थोड़ा थोड़ा बेंड है। 5 4 3 2 एंड 1, कम डाउन। फराह एंड जश्न बहुत बढ़िया है, सुंदर है। देखो जश्न और फराह एक एक करके चेक करते हैं। जस्ट सेकंड।
कहाँ गया मैं? I can't see myself. अरे where am I? Okay. ध्यान से देखो। फरा, ये बहुत अच्छा है। शोल्डर और स्पाइन हिप एक लाइन में है, सो इट्स अ गुड जॉब। धीरे धीरे हमको और क्लोज आने की कोशिश करनी है, वीक बाय वीक, डे बाय डे इंप्रूव होना चाहिए, ठीक है। जश्न देखो, एल्बो दिख रहा है, हल्का हल्का बेंड, हाथ से और प्रेस करना है, वॉल के और क्लोज भी जाना है हमको। अभी साइड एंगल से देखूंगा मैं, आप भी नोटिस करोगे तो शोल्डर हिप के बिल्कुल ऊपर नहीं है, बिल्कुल ऊपर नहीं है। देखो यहाँ फरा के भी बिल्कुल ऊपर नहीं है, 90% 80% ऊपर है, 90% आ गया, राइट। तो हमको शोल्डर के हिप के लिए ऊपर लेना है, हाथ से और प्रेस करना है और वॉल की तरफ और वॉक करना है, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। चलिए, बाकी सबका आया। एनीवन wants me to see them, check them for straight line? सबका स्ट्रेट लाइन ठीक है, स्ट्रेडल की तरफ चल सकते हैं। एनी कंफ्यूजन, एनीवन, कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई डाउट है? गुरप्रीत, यू वांट टू शो वन मोर टाइम? गुरप्रीत का नहीं देखा, यू वांट टू शो? लेट्स सी, गो फॉर इट। 10 सेकेंड ईच लेग होल्ड करके दिखाओ मुझे। अलाइनमेंट नहीं बिगड़ना चाहिए, और मैं बोलूं तभी लेग रिलीज करना। अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा तो लेग रिलीज नहीं करेंगे हम। वेरी गुड, वेरी गुड। पोस्टीरियर टाइट, हाथ पे पूरा वेट लो, बस यहीं पे रुक जाओ। वेरी गुड, हाथ से पूरा प्रेस, हिप को ऊपर लेके आओ। वेरी गुड, टोज रोल करो, अलाइनमेंट ठीक है। शोल्डर वॉल की तरफ बना के रखो, स्पाइन बेली जितना खींच सकते हो उतना खींचो, वॉल से दूर, वॉल से दूर। बेली अवे फ्रॉम द वॉल, बेली बेली अवे फ्रॉम द वॉल। चलेगा, टोज टच करो आपस में। हिप अवे फ्रॉम द वॉल, हिप अवे फ्रॉम द वॉल, हिप अवे फ्रॉम द वॉल। दो लेग रिलीज करने की जरूरत नहीं है अभी, हिप अवे फ्रॉम द वॉल लेके जाओ, हिप अवे फ्रॉम द वॉल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है, राइट। शी इज ट्राइंग बट इट्स नॉट हैपनिंग। कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन। देखो, ध्यान से देखो। इनिशियली इट वाज गुड, ये हम लोगों ने पहले पिक्चर में भी देखा था, राइट। इसको थोड़ा अंदर लेंगे तो ये लाइन बन जाएगा हमारा। ये अंदर नहीं जा रहा है, ये अंदर नहीं जा रहा है, तो इसके लिए क्या, कौन सा स्ट्रेच लगाएंगे कि ये ठीक हो? फ्लोर से हम कैट एंड काउ से शुरू करेंगे। बेसिकली यही है, राइट। रिब केज वॉल की तरफ है, इसको अंदर लेना है, यहाँ ले लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये आप हैंड स्टैंड में नहीं कर पा रहे हो, ये आप हैंड स्टैंड में नहीं कर पा रहे हो। सर सेम थिंग मेरा भी ऐसे ही हो रहा है ना। तब मोस्ट अलाइनमेंट में शोल्डर और हिप सब कुछ है दोस्तों। आपका शोल्डर और हिप एक लाइन में आया, आप स्पाइन स्ट्रेट रख पाओ, आपका अलाइनमेंट इज गुड। सबके लिए थोड़ी थोड़ी करेक्शन है। गुरप्रीत का साइड एंगल से हम लोग विजिबली देख पा रहे हैं, सबके लिए छोटा 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 इंप्रूवमेंट आना चाहिए। सब जने एक ड्रिल लगाते हैं। कैट एंड काउ मुझे हैंड स्टैंड में लगा के दिखाओ, जिनके लिए अभी कंफर्टेबल नहीं है वो चेयर पे लगा के दिखाओ। ये प्लैंक हो गया, ये कैट, ये काउ, ये कैट, ये काउ, ये कैट, ये काउ। हैंड स्टैंड में कैसे लगेगा? वन पाम डिस्टेंस लेंगे अगेन, वन पाम डिस्टेंस लेंगे अपन। कैट काउ, कैट काउ, कैट काउ, कैट काउ, कैट काउ। कोशिश करो, आ रहा है? आप सबका फिक्स हो जाएगा अगर आप कैट एंड काउ लगा पाए तो। देखो, ऊपर नीचे नहीं, जश्न कैट एंड काउ, केवल पेल्विक मूव होना चाहिए। नहीं, जश्न देखो कैमरे में, केवल पेल्विक मूव होना चाहिए। पेल्विक ओपन, पेल्विक क्लोज। सर टोज कैसे रहेंगे वॉल पे? तो अभी रोल रख सकते हो तो रोल, टक करोगे तो भी चलेगा। पेल्विक मूवमेंट पे ध्यान दो। गुरप्रीत देखो, आप फिक्स कर पा रहे हो। एंटीरियर पोस्टीरियर करो, ये देखो फिक्स हुआ, बहुत अच्छा है। एंटीरियर अगेन, पोस्टीरियर, स्वीटी अच्छा कर पा रहे हो। वॉल की ओर क्लोज जाके ट्राई करो। राजेश जी आप भी कर पा रहे हो, निशा ट्राई करो। एंटीरियर पोस्टीरियर। विनीता आप भी अच्छा कर पा रहे हो, लेकिन हिप शोल्डर के थोड़ा और ऊपर लो। लेट्स सी फरा, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आ रहा है, मिनिमम मूवमेंट आ रहा है बट आ रहा है। आप समझ पा रहे हो क्या करना है? यस जश्न, ये अच्छा है। अब ये मुझे एलिवेटेड सरफेस पे लगा के दिखाओ। गुरप्रीत यू फिक्स्ड इट, यू फिक्स्ड इट। छोटा ब्रेक लो, सब जने देखेंगे, सब जने नीचे आओ। ध्यान से देखिए, गुरप्रीत ने अपना अब भी करेक्शन किया है। फिर से लगा के दिखाओ गुरप्रीत, और हम वापस पिच चलेंगे 3 टाइम्स, ठीक है। और फिर पोस्टीरियर पे होल्ड करके दिखाना। वी फिक्स्ड इट। चलो, टोज रोल, टोज टुगेदर, वेरी गुड।
चलो एंटीरियर, ये पोस्टीरियर हो गया, एंटीरियर करो, ये एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर करो, स्क्वीज 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 स्क्वीज, अभी शोल्डर पुश करो, पोस्टीरियर टाइट रखो और शोल्डर पुश करो वॉल की तरफ, पोस्टीरियर टाइट करो वापस, एंटीरियर खुल गया, पोस्टीरियर पोस्टीरियर, गुड ट्राई, देखो शोल्डर आगे भाग जाता है, सबने नोटिस किया, जैसे ही पोस्टीरियर टाइट करते हैं शोल्डर आगे भाग जाता है, राइट। आइसोलेशन दोस्तों, मतलब जब आप पेल्विक मूव करो शोल्डर नहीं हिलना चाहिए, और वो हिलता है सबके साथ, शुरू शुरू में होता है, इसको आइसोलेशन बोलते हैं। शोल्डर चला है तब पेल्विक नहीं चले, पेल्विक चला है तब शोल्डर नहीं चले, आइसोलेटेड होना चाहिए। बट यू डिड अ गुड जॉब पिछली बार से, देखो ये दिख रहा है पहले से अलाइनमेंट ठीक हुआ है, पहले से ठीक हुआ है स्पाइन हमारा थोड़ा, ये देखो ये हुआ, यू सी दैट डिफरेंस, ए पोस्टीरियर राइट, यू सी दैट मूवमेंट कमिंग, पोस्टीरियर टाइट, धीरे धीरे फिक्स होगा, बट आपको ये पता होना चाहिए मेरी गलती क्या है, मुझे करना क्या है, राइट। अगर आप ये समझ जाए, अच्छा ये करूंगी तो ये ठीक हो जाएगा, देन यू आर सॉर्टेड। प्रॉब्लम क्या आती है, हमको नहीं पता है गलती क्या है, फिर हमको नहीं पता है सुधारनी कैसी है, राइट। जश्न अभी भी गलत हो रहा है, देखो जश्न, आप सब जने देख पाओगे, गो जश्न, जश्न क्या कर रही है, हिप ऊपर नीचे ले रही है, अप एंड डाउन हो रहा है, ओपन क्लोज नहीं हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, ओपन क्लोज करो, ये अप हुआ, ये डाउन हो गया, देयर इज नो ओपन क्लोज, ये अप हुआ, ये डाउन हुआ। अभी कैट एंड काउ लगाओ फ्लोर पे, फ्लोर पे लगाओ, फ्लोर पे आ रहा है, राइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है, वेट बढ़ता जा रहा है, मूवमेंट डिफिकल्ट होता जा रहा है, और अगेन न्यूरोलॉजिकल पाथवे नहीं बना हुआ है, तो शी डजंट नो व्हाट इज अप एंड डाउन एंड व्हाट इज ओपन क्लोज, राइट। आप और मैं नोटिस कर पा रहे, शी इज नॉट गेटिंग इट कि क्या गलत है, बिकॉज द न्यूरोलॉजिकल पाथवे इज नॉट इज मिसिंग राइट नाउ। ठीक है, सबको समझ में आया। आगे बढ़े हम स्ट्रेडल की तरफ, आगे बढ़े स्ट्रेडल की तरफ। विनीता एक बार मुझे होल्ड लगा के दिखाओ, चलो एक बार विनीता का देखते हैं, शी इज ऑलरेडी अप। विनीता दोनों टोस टच करके होल्ड करके दिखाओ, हाथ पे वेट लो, हाथ पे वेट लो, लेग रिलीज करो, चलो रिलीज करो, आएगा, आएगा, हाँ रिलीज करो, हाँ आ रहा है, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, फिंगर्स पे बैठ लो, कोशिश करो भरोसे से रिलीज करो, कुछ नहीं होगा, हाँ रिलीज करो, फ्लिप कर जाते हो, रिलीज भी हो रहा है, होल्ड भी आएगा, फ्लिप नहीं करना है। पता है क्या, हमारा ब्रेन हमको वो एयर टाइम लेके नहीं जाने देता है, क्योंकि वहां पे वो फियर फील होता है, सो हमको वो फाइट करना है और फिर होल्ड करना है, हमको वहां होल्ड करना है। बिग इनहेल एंड एक्सहेल विनीता, यू रिलीज द लेग एंड यू इनहेल एंड यू विल गेट द होल्ड। ठीक है, लेग रिलीज करने के बाद सबसे पहला काम होता है, वो होता है बिग इनहेल एंड एक्सहेल, इफ यू गेट दैट यू विल गेट अ 6 to 8 second होल्ड, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग सॉलिड अबाउट इट एज वेल, राइट। एक बार वहां पे ब्रेन को फील हुआ, अरे बैलेंस आ रहा है, केवल इतना ही चाहिए विनीता, फ्रॉम व्हाट यू डिड टुडे एंड फ्रॉम एवरी टाइम टू गेट द बैलेंस। हर बार बैलेंस के लिए क्या चाहिए राजेश जी, विनीता, स्पेशली बोथ ऑफ यू एंड निशा फॉर यू एज वेल, यू नीड टू हैव दैट वन इनहेल एंड एक्सहेल, एक बार चाहिए। एक बार आया ना, आपका ब्रेन आपको उल्टा बोलना शुरू कर देगा, अभी आपको ऐसा बोलता है वॉल की तरफ चलो, बैलेंस नहीं आएगा, गिर तो नहीं जाओगे, ये फियर किक इन होता है, फिर उल्टा होगा, अरे बैलेंस आ रहा है, आई कैन डू इट। जैसे ही आपका ब्रेन आपको ये बोलना शुरू कर दे, यू हैव अनलॉक्ड इट। ठीक है, सबसे पहले अलाइनमेंट, फिर स्ट्रेंथ, सब कुछ ठीक हुआ, तो फिर ये लास्ट पार्ट है जो निशा विनीता और राजेश जी का है, एकदम लास्ट पार्ट, राइट। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, सेकेंड पार्ट ऑफ द डे इज कॉल्ड स्ट्रेडल। सबसे इजी वर्जन क्या होगा, हाथ रखेंगे ऐसे, वन लेग ऑन द वॉल, सेकेंड लेग ऑन द वॉल, दोनों लेग्स वाइड रखेंगे, हम वाइड रखेंगे। अगेन जो पहली बार लगा रहा है आपको गोल रखना है 30 सेकेंड का, 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड का। जिन्होंने पहले लगाया देखो ध्यान से, जिन्होंने पहले लगाया क्लोज जाओ, हिप को शोल्डर के ऊपर लेके आओ, हिप को शोल्डर के ऊपर लेके आओ। जिनको अलाइनमेंट ठीक करना है, देखो ये एंटीरियर पोस्टीरियर, और इसको कैट एंड काउ भी बोल सकते हो, कैट एंड काउ, कैट एंड काउ, कैट एंड काउ, काउ इज माय हैंडस्टैंड, कैट इज नॉट माय हैंडस्टैंड, राइट। यहां रहना, जितना क्लोज जा सकते हो उतना क्लोज, राजेश जी, निशा, जितना क्लोज जा सकते हो उतना क्लोज, ठीक है। चलो लेट्स गो फॉर इट, कैट एंड काउ लगा के फिक्स करो उसको। परा, यू हैव अ कैट, you have 6 cat, we need cow now। चलिए दोस्तों लेट्स गो,
सर हैंड्स में उतना ही गैप रहेगा ना, शोल्डर विथ द हैंड्स पार्ट, ऑलवेज फोर फिंगर्स गैप. शोल्डर. जश्न लेग्स वाइड एज यू कैन. जश्न पाँव के बीच में कितना गैप रख सकते हो उतना गैप रखो. निशा अच्छा है, वॉल के बहुत पास हो लेकिन, और पूरा फुट वॉल पे रखा हुआ है निशा. टोज रोल रखने, स्लाइड करना है हमको. राजेश जी लेग्स ओपन करो वाइड. सॉक्स पहन को. सब जने जो लोग बेली को बहुत क्लोज ले जा पा रहे हो, हाथ को बहुत क्लोज लेके जा पाते हो, टोज लो, सॉक्स पहनो. ये अच्छा है. विनीता का अच्छा है. स्वीटी अच्छा कर पा रहे हो. लीन नहीं करो स्वीटी, हाथ पे वेट लो पूरा. वॉल को बैलेंस के लिए यूज करते हैं दोस्तों, वॉल पे लीन नहीं करना होता है हमको. विनीता बहुत बढ़िया. होल्ड करो. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. विनीता पूरा वेट हाथ पे लो. टोस्ट का केवल नाखून का हिस्सा टच होना चाहिए, केवल अंगूठा और अंगूठे का भी नाखून. एकदम फेदर टच रहो वॉल पे, एकदम फेदर टच. कोशिश करो एकदम फेदर टच. चलो नीचे आ जाओ. थोड़ा सा वॉल से और दूर रहने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा वेट शिफ्ट करेंगे. विनीता अभी भी 10-15% वेट वॉल पर है. हमको चाहिए फेदर टच. नो वेट ऑन द वॉल, ओनली बैलेंस. राइट, नो वेट ऑन द वॉल, ओनली बैलेंस. चलो कौन दिखाएगा मुझे. निशा अच्छा है लेकिन देखे देखे दोस्तों, अच्छा है. ये अच्छा है. एंटीरियर पोस्टीरियर अच्छा है, बट शोल्डर के ऊपर हिप है क्या, नहीं है. पूरा फुट वॉल पे है, यस. टोज रोल्ड नहीं है. राइट. निशा पहले वॉल के जितना क्लोज जा सकते हो उतना क्लोज जाओ, उसके बाद स्लाइड करो. सॉक्स पहनो. ठीक है राजेश जी, स्वीटी, गुरप्रीत, विनीता, सॉक्स पहनो बिकॉज योर अलाइनमेंट इज रियली गुड. पहले क्लोज जाओ वॉल के, फिर स्लाइड करके ओपन करो. ठीक है. और फिर एंटीरियर पोस्टीरियर गुरप्रीत लगा के दिखाएगी मुझे. उसके पहले मैं फरा का चेक करूंगा. चलो फरा को. कितना आ रहा है. लेग ओपन ऑन द वॉल, जितना अंदर आ सकते हो उतना अंदर. कोशिश ये है कि हिप शोल्डर के ऊपर आ जाए. चलो. जस्ट इज देयर इज एनी पॉसिबिलिटी यू गिव मी साइड एंगल, जैसे फरा का एंगल, कैन यू गिव मी दैट एंगल. हम लोग हिप और शोल्डर का लाइन चेक कर पाएंगे. देखिए राजेश जी भी बहुत सुंदर लगा रहे हैं. आई विल पुट बोथ ऑफ देम ऑन स्पॉटलाइट. टोज रोल करते हुए नीचे लेके आएंगे, जितना नीचे ला सकते हो उतना टोज रोल. हील्स टुवर्ड्स द वॉल राजेश जी. अच्छा है. फना दोनों हाथ के बीच में देखो, क्या अंदर आ सकते हो. वन स्टेप क्लोजर जा सकते हो. वन स्टेप क्लोजर आ सकते हो क्या. कोशिश करो, कोशिश करो, जितना मैक्स आ सकते हो उतना. एंड होल्ड. चलो 10. राजेश जी एक पाँव ऊपर एक पाँव नीचे. 9 8 7, कोई बात नहीं. 6 5 4 3 2 एंड 1. अभी फरा आप वॉल को पुश कर रहे हो, वॉल पे पुश कर रहे हो, मतलब पूरा वेट वॉल पे डाल रहे हो आप. राइट. हमको टो को पुश करके पूरा वेट हाथ पे लेके आना है. इनिशियली क्या होता है, हम क्योंकि वॉल पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और सीख रहे हैं, हम ये करते हैं, आप ये कर रहे हो ऐसे ऐसे कर रहे हैं. जबकि हमको करना क्या है, हमको ये करना है, ये करना है. हमको वॉल को इतना ही यूज करना है. वेट तो हमको हाथ के ऊपर चाहिए. राइट. तभी तो हम रिलीज कर पाएंगे. वेट तो हमको हाथ के ऊपर चाहिए. बराबर. चल कौन दिखाएगा मुझे नेक्स्ट. निशा क्लोजर टू द वॉल. निशा एंड गुरप्रीत, यू गो. गुरप्रीत थोड़ा वॉल से दूर रहो. एल्टीरियर पोस्टीरियर आगे आया अभी. ठीक है. सेम इसमें भी ट्राई करेंगे. चलो मैं पिक्चर लूंगा आपका. क्लोजेस्ट टू द वॉल निशा, जितना क्लोज जा सकते हो. ये लाइन अच्छी है. हाँ चलो स्लाइड करो. टोस पॉइंटेड रखो. हील्स टुवर्ड्स द वॉल. होल्ड करो. एकदम अंगूठा वॉल पे, केवल अंगूठा रख के दिखाओ निशा. केवल नाखून चाहिए मुझे वॉल पे. वेरी गुड. पोस्टीरियर और टाइट करो. 10 9. यस पोस्टीरियर छूट गया. एंटीरियर खुला, नोटिस किया. एंटीरियर खुला तब हाँ वॉल रिलीज हो गया. हाँ गुरप्रीत एंटीरियर लगाओ. नाखून रखो गुरप्रीत वॉल पे. नाखून रखो. टोस टक किए हुए हैं आपने. टोस टक किए हुए हैं आपने. पोस्टीरियर दिखाओ. एंटीरियर हो गया है. पोस्टीरियर करो और करो. शोल्डर आगे भाग गया. नीचे आ जाओ. यस होल्ड करो इधर ही. पोस्टीरियर टाइट एंड होल्ड. पोस्टीरियर टाइट. हील्स टुवर्ड्स द वॉल. निशा होल्ड नहीं कर पा रहे, खुल जाता है बार बार पोस्टीरियर. यस यहीं होल्ड करो. 10 9 8. हाँ होल्ड करो, पकड़ के रखो पोस्टीरियर. 7
6 5 4 3 2 and 1. गुड जॉब निशा. डिड यू नोटिस? खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है. किस किसने नोटिस किया? राइट. वो खुल जाता है फिर पकड़ो, फिर खुल जाता है फिर पकड़ो, फिर खुल जाता है फिर पकड़ो. वो पकड़ के रखना है. इट रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कोर स्ट्रेंथ. तभी हमने स्टार्टिंग में 100 रेप्स लगाए थे. राइट. अब इमेजिन करो आप 100 रेप्स क्लोज लगाओगे तो आप इतने स्ट्रांग बन पाओगे कि उसको पकड़ो और वो खुले ना. मेक सेंस? सबको बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट कौन लगा के दिखाएगा मुझे? अभी जश्न का साइड एंगल है. लेट्स स्टार्ट विद जश्न ओनली. जश्न एंड स्वीटी, यू गो. चलो. वेरी गुड. जश्न लेग में जितना डिस्टेंस रख सकते हो उतना डिस्टेंस रखो. हाथ को जितना अंदर ला सकते हो उतना अंदर. हिप को शोल्डर के ऊपर लेके जाना है. दैट्स द गोल. स्वीटी हाथ से पूरा प्रेस. हील्स टुवर्ड्स द वॉल. नाखून वॉल पे रखेंगे नहीं. केवल नाखून वॉल पे टच होने चाहिए. हाँ बेटर. बोथ ऑफ यू. गुड जॉब. होल्ड इट फॉर 10 9 8 7 6 5 4 3. गुरप्रीत बहुत सुंदर है. 2 and 1. स्लोली कम डाउन. स्लोली कम डाउन. बहुत बढ़िया. राजेश जी का भी सुंदर है. गुरप्रीत अभी थक गए हो, नीचे आ जाओ. चलिए दोस्तों ध्यान से एज देखिए. कम्पेयर टू बिफोर, अभी मुझे कभी भी मतलब वॉल से गिरने का फियर नहीं रहता है. जब मैंने लास्ट बार किया था तो मैं बहुत फियर में थी. मतलब पहले मुझे से कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? लिटरली, हाँ, अब मुझे गिरने से डर नहीं लगता है. ऐसा लगता है मैं मैनेज कर लूंगी. कर लोगे मैनेज. गुड जॉब. ये वाला अलाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सुंदर था. ध्यान से देखिए सब जने, ध्यान से देखो. अभी ये ना हिप ओपनिंग और अच्छी होगी तो पाँव और नीचे आना शुरू होगा. बट ग्लूट टाइट करके रखे. आप देख सकते हो लेग बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है. राइट. और बिल्कुल नाखून वॉल पे रखे हुए. बिल्कुल नाखून वॉल पे रखे हुए. राइट. पूरा बॉडी स्ट्रेट दिखता है. तो इट्स अ गुड स्पॉट. इट्स अ गुड स्पॉट. स्वीटी गुड जॉब. जश्न. राइट. अलाइनमेंट वाइज हमको हिप को शोल्डर के ऊपर लेके आना है. सो हमारा जर्नी ये रहेगा कि हम एक स्टेप और अंदर जाएं, पाँव से और प्रेस करें और हिप को शोल्डर के ऊपर लाएं. एक लाइन में लेके आना है. सबसे पहला गोल यही है हमारा, आगे बढ़ने के पहले. बराबर. बाकी अच्छा है. पहले हमारा वॉल की तरफ ही चला जाता है. उसके लिए क्या करना है अभी जो अपने काय के लिए? कैटेगरी, वापस वापस पूछो, वापस पूछो. जैसे हम वॉल के पास जाते हैं ना, तो बेली मेरा ऐसा लगता है कि वॉल के पास ही जाता है, जो जबकि वो दूर जाना चाहिए, वो जा नहीं देखिए पाता. शुरू में अभी जिस स्टेज पे हम हैं, वॉल के पास जाओ, फिर वॉल से रिलीज करो शुरू शुरू में. ठीक है. धीरे धीरे फिर तो हमको वॉल चाहिए ही नहीं. राइट. बट इनिशियली क्योंकि आप वॉक कर रहे हो, अभी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, शोल्डर स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो पहले वॉल के पास जाओ, फिर वॉल रिलीज करो. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. चलिए जिनका स्ट्रेडल अच्छा आया, राजेश जी, विनीता, निशा, आपका स्ट्रेडल आया. निशा का पहले भी खुल जाता है थोड़ा. ठीक है. लास्ट राउंड लगाएंगे स्ट्रेडल का, फिर टक की तरफ चलेंगे. ध्यान से देखो करना क्या है. आप मुझे केवल नेल्स वॉल पे टच करके दिखाओगे. अगर होल्ड कर सकते हो होल्ड, रिलीज कर पाओ और अच्छा. हाथ को वॉल से थोड़ा दूर रखेंगे ताकि आपके पास स्पेस रहे जब आप वेट शिफ्ट करो. वेट शिफ्ट इज द की दोस्तों. जस्ट ना एट योर स्टेज एज वेल. अगर आप यहां से देखो, मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा, यहां से भी केवल वेट शिफ्ट कर पाओ. ज्यादा दूर क्लोज जाना जरूरी नहीं है. अरे जूम, सॉरी. हाँ एक सेकेंड. जरूरी नहीं है कि आप हाथ को यहां रखोगे तभी आपका हिप ऊपर जाएगा. आप टो से प्रेस करके हिप को शोल्डर के ऊपर लाने की कोशिश कर सकते हो. गोल यही है कि हमारा हिप शोल्डर के ऊपर आ जाए. इवेंचुअली वॉल के कितना क्लोज हो वो फर्क नहीं पड़ता. फर्क ये पड़ता है कि एवरीथिंग इज ऑन टॉप ऑफ ईच अदर और नॉट, एंड योर एबिलिटी टू रिलीज द वॉल. राइट. अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं, हमको वो जगह चाहिए जहां से अलाइनमेंट स्ट्रांग रखना और लेग रिलीज करना दोनों कंफर्टेबल हो. राइट. तो वो स्पेस क्या है? हाफ एल्बो फ्रॉम द वॉल और 1 एल्बो फ्रॉम द वॉल. वहां से अलाइनमेंट भी रखना इजी है, लेग रिलीज करना भी इजी है. सो निशा, विनीता, गुरप्रीत, राजेश जी, स्वीटी, आप लोगों का अलाइनमेंट अच्छा है. आप मुझे होल्ड, गुरप्रीत और स्वीटी होल्ड करके दिखाओ. विनीता, निशा, राजेश जी रिलीज करने की कोशिश करो. केवल नाखून वाल पे चाहिए. जश्न फरा, हिप को शोल्डर के जितना ऊपर ला पाते हो 30 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करेंगे. यस स्वीटी. वेट कहाँ पे आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए वेट फिंगर्स? हमेशा ध्यान से देखो. आपको बैलेंस की जरूरत है. तो आपका आइडली कॉमन सेंस क्या बोलता है कि वेट बीच में रहना चाहिए. कॉमन सेंस क्या बोलता है? बीच में रहना चाहिए. आपका हैंड स्टैंड कंट्रोल फिंगर्स पे होता है. तो जब आप वॉल की तरफ हो, नेचुरली बॉडी वेट यहाँ पर है. नेचुरली बॉडी वेट यहाँ पर है. ठीक है. क्योंकि आप वॉल की तरफ हो, वॉल की तरफ लीन कर रहे हो. आप यहां से बॉडी वेट यहां शिफ्ट करना की कोशिश करते हो
और फिर फिंगर को प्रेस करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आइडियली वेट आपको यहीं पे चाहिए, लेकिन फिंगर को प्रेस करके, यहां वेट रुकेगा नहीं अगर आप फिंगर प्रेस नहीं करोगे, वेट वापस यहां आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा मसल है, दिस इज अ बिग मसल पूरे पाम का, तो बॉडी वेट बार बार इधर आता है। हमको बॉडी वेट यहाँ पे लेना है और फिर फिंगर से प्रेस करना है ताकि आपका वेट वापस यहाँ पे शिफ्ट ना हो। बात समझ में? सर मेरा थ्योरी इज इजी सारा टू वेट अंडरस्टैंड, इधर, थ्योरी इज इजी टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू एक्सरसाइज ऑन द वॉल, राइट? यस, जस्ट मेरा सारा वेट इधर रिस्ट पे ही आ रहा है, और जब मैं वॉक आएगा, बैक करने की इनिशियली आएगा, कोशिश कर क्योंकि रही आपने हूँ। पूरा वॉल की तरफ लेन किया है। अभी आप इसको ऐसे देखो ना, सिंपल अलाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये है, ये वॉल है, अगर मैं इस तरफ लीन करूंगा तो बॉडी वेट इस तरफ आएगा ज्यादा, इस तरफ वेट ज्यादा रहेगा, ये आपका हाथ है, नेचुरल है, राइट? यहां से ये प्रेस करके यहां लेके आना, इट रिक्वायर्स अवेयरनेस, राइट? इसलिए मुझे वॉक बैक नहीं करने दे रहा। चेयर पे मैं वॉक बैक कर पा रही हूँ, पर वॉल पे आई एम नॉट एबल टू वॉक बैक, क्योंकि ये हाथ कांपने लग जा रहा है, आप अभी सीढ़ियाँ जहां पर हो स्टेबल ना, नहीं वहीं से टो को प्रेस करके हिप को शोल्डर के ऊपर लाओ, अपने आप वेट शिफ्ट भी होगा। तो हो आपको बस। क्या करना चाहिए, आप दूर रहो, ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश करते हो स्पाइसी होगा, तो आप यहाँ पर हो, अभी चलेगा, यहाँ से ये ट्राई करो, अभी मेरा वेट शिफ्ट भी हो गया और हिप भी शोल्डर के ऊपर चला गया, राइट? अगर यहाँ 30 सेकेंड आएगा तो ये भी धीरे धीरे आ जाएगा, राइट? चलिए सब जने, लेट्स गो फॉर इट। तो मतलब वेट जब शिफ्ट करना है तो हमारी फिंगर्स ऐसे कर देनी है ऐसा? यस, ग्रिप कर लेनी है। कैसे कर देनी? इसके लिए एक आइडल है, ये नकल्स। नकल्स छत की तरफ रहेंगे, नकल्स छत की तरफ रहेंगे, ये भी डिफिकल्ट है, ध्यान से देखो, ये सब जने आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा। ये प्रैक्टिस कर करके देखो कैसा कप हो गया है। तो आई कैन प्रेस दिस पार्ट ऑन द फ्लोर, राइट? आई कैन प्रेस दिस पार्ट ऑन द फ्लोर, ये धीरे धीरे आपका भी हो जाएगा, राइट? तो ऐसा कप बन जाता है। चलो आ जाओ, लेट्स सी, गो फॉर इट, गो फॉर इट सब जने, चलो लास्ट, टक लगाओ, टक, हिप को शोल्डर के ऊपर लाने की कोशिश करो, जिनका अभी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, जिनका अलाइनमेंट अच्छा हो गया, वॉल रिलीज करने की कोशिश करो, ग्लूट इंगेज करके। विनीता, ग्लूट इंगेज नहीं करोगे पाँव नीचे आ जाएगा, ग्लूट इंगेज, पोस्टीरियर टाइट एंड फिंगर्स पे वेट, और लेग रिलीज इफ यू कैन। यस निशी, सब कुछ अच्छा है भैया, ग्लूट इंगेज नहीं किया, ग्लूट इंगेज नहीं करोगे तो पाँव नीचे आ जाएंगे, थोड़ा दूर रहेंगे राजेश जी, वॉल से थोड़ा दूर रहोगे। विनीता, लेग रिलीज नहीं हुआ, चलिए राजेश जी लेग रिलीज करके दिखाएंगे। गुरप्रीत, बहुत अच्छा स्पॉट है, उधर ही होल्ड करो, गुरप्रीत बहुत अच्छा कर रहे हो, टोस को रोल कर लो यहीं पे और होल्ड करो। जश्न, पहले से अच्छी कोशिश है। राजेश जी लेग रिलीज होना चाहिए आपका, कोशिश करो, कोशिश करो। हाँ वेरी गुड, देखिए विनीता, देखो एकदम फेदर टच है, ये आया, वेट आया, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था राजेश जी, गुड जॉब। राजेश जी यहाँ से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए आपको, टैप लगाने की कोशिश करो, तो हमको ये ट्राई करना चाहिए, यहाँ आए, ये रिलीज हुआ, 3 2 1 बैक, 3 2 1 बैक, 3 2 1 बैक, रिलीज करो, वॉल पे जाओ, रिलीज करो, वॉल पे जाओ, रिलीज करो, इंटेंशनली वॉल पे जाओ, आपको पता चलेगा बॉडी वेट शिफ्ट होना। ये मेरे फिंगर्स पे वेट आया और मैं कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं नीचे आ गया, राइट? आपकी अवेयरनेस रहेगी कि कहां गलती हुई, राइट? चलिए दोस्तों, एवरीवन इज फीलिंग गुड, स्टेटल सबको समझ में आया, स्टेटल सबको समझ में आया, टक की तरफ चले, अभी टक की तरफ चले, दिस इज द लास्ट। सो प्राइमरी हमारा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेडल, टक आर कॉल्ड द 3 प्राइमरी आसनास इन द हैंडस्टैंड। ये तीनों सबको आना ही चाहिए, या फिर तीनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी क्लास में। जब आप हैंडस्टैंड प्रैक्टिस करो, आपको स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेडल और टक तीनों लगाने ही चाहिए, ठीक है? टक कैसे लगाते हैं, पहले फ्लोर पे समझो टक होता क्या है। टक इज व्हेन योर नीज बेंड टुवर्ड्स द बेली, इसको टक बोलते हैं, बराबर? यही हम वॉल पे ट्राई करेंगे। बेसिक बिगिनर वर्जन दोस्तों, टोस टक, टोस टक ऑन द वॉल। अगेन अभी देख रहे हो आप, बॉडी वेट पूरा वॉल की तरफ है, ठीक है? यहां से कोशिश करो हिप को शोल्डर के ऊपर ला पाओ, यहाँ पे, ठीक है? यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है? जिनको आता है, पहले ट्राई किया है, हाथ को अंदर लो, टोस को रोल करो, हिप को शोल्डर के ऊपर लेके आओ, ठीक है? चलो 30 सेकेंड्स दोस्तों, आ जाओ। लुक बिटवीन द हैंड्स, शोल्डर को वॉल की तरफ पुश करके रखेंगे। अगर डिफिकल्ट है फराज, चेयर पे ट्राई करो। वेरी गुड स्वीटी, अच्छा है, जितना अंदर जाओगे उतना डिफिकल्ट होगा। द क्लोजर यू आर टू द वॉल, द मोर स्पाइसी इट गेट।
हाँ, टोज रोल, नीज टचिंग ईच अदर। जस्ट न टोस, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं ट्राई करो, जस्ट न टोस टक रखो आप, और हिप को शोल्डर के ऊपर लो। देखो आ रहा है क्या? कैमरे में देखते जाओ, कैमरे में देखते जाओ। हाँ, शोल्डर वॉल की तरफ, हिप शोल्डर के ऊपर। तो हिप अवे फ्रॉम द वॉल, शोल्डर टुवर्ड्स द वॉल, ट्राई करो। हिप को शोल्डर के ऊपर लो, यूर डूइंग गुड। हिप को शोल्डर के ऊपर लेना है, छोटा ब्रेक लो। स्वीटी अच्छा है, होल्ड करो, छोटा ब्रेक लो, जस्ट छोटा ब्रेक लो, फिर से जाएंगे। रिकवर नाइसली एंड देन गो। स्वीटी यू डिड अ गुड जॉब। विनीता बहुत बढ़िया है, होल्ड करो उधर ही। राजेश जी बहुत बढ़िया है, होल्ड करो। राजेश जी शोल्डर आगे भागा थोड़ा, पुश करो शोल्डर को वॉल की तरफ। बॉडी वेट हाथ पे ही रखना है, लेकिन शोल्डर वॉल की तरफ रखना है। चलो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। गुरप्रीत बहुत सुंदर लगा रहे हो, बहुत बढ़िया है। निशा योर टर्न। चलो गुरप्रीत, ये सेम सेम रेप मुझे वॉल के कितना क्लोज जाके दिखा सकते हो? बहुत सुंदर था, अलाइनमेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन जितना क्लोज होगे उतना डिफिकल्ट होगा ये अलाइनमेंट मेंटेन रखना। वेरी गुड निशा, टोज रोल, होल्ड करो इधर ही, नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं, बस यहीं पकड़ के रखो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली कम बैक। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, सुंदर आया। फरा, हिप शोल्डर के थोड़ा सा और। फरा इज स्माइलिंग ऑल द टाइम, आई लाइक इट। हिप थोड़ा सा और ऊपर, जस्ट हिप थोड़ा सा और ऊपर। यू गॉट द पॉइंट राइट? जब आप वॉल के क्लोज आते हो, ध्यान से देखो। गो फॉर इट फरा, गो गो गो, जस्ट गो गो। हाँ, वॉच एक बार देखते हैं फरा, फिर ट्राई करना, ठीक है? शोल्डर को पुश करके रखो, अभी दोनों टो से प्रेस करो वॉल पे, और हिप को शोल्डर के ऊपर। कैमरे में देखते हुए भी जा सकते हो, कैमरे में देखो। जब हिप शोल्डर के ऊपर लोगे, शोल्डर दूर भागता है, शोल्डर को दूर भागने से बचाओ। शोल्डर को वॉल की तरफ पुश करो फरा, हिप को शोल्डर के ऊपर लो। कैन यू वॉच द कैमरा? वॉच में देखो, हिप को ऊपर लेने की कोशिश करो, कोशिश करो हिप को ऊपर लेने की। यस, गुड ट्राई, गुड ट्राई, गुड ट्राई, गुड ट्राई। 10, 9, गुड ट्राई, गुड ट्राई, सही जा रहे हो। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। नॉट अ बैड ट्राई, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड। सबको नोटिस हुआ हिप का मूवमेंट शोल्डर के ऊपर जाता है, सबको दिखा राइट? चलो फरा ट्राई करो। My hands are tired. जितना आ रहा है उतना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक होगा। जितना आ रहा है उतना, हाथ को जितना अंदर ले सकते हो अंदर लो, हिप को शोल्डर के ऊपर जाने दो। हाँ, पाँव यहीं रखेंगे। हाँ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, जितना आ सकते हो अंदर आओ। चेयर यूज करो इफ इट इज टू हैवी। हाथ में वेरी गुड फरा, अच्छा है। दोनों पाँव से प्रेस करके हिप को शोल्डर के ऊपर लेने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। 10, ये पाइक हो गया आपका। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली कम डाउन। स्वीटी आपका टक अच्छा था, निशा टक परफेक्ट था, विनीता, राजेश जी, गुरप्रीत सबका टक अच्छा था। ध्यान से देखो, अगर आप 30 सेकेंड गुड फॉर्म के साथ टक होल्ड कर सकते हो, सो सेकेंड स्टेप आता है आपका फुट रिलीज, ठीक है? फुट रिलीज का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं पाँव को रिलीज करके हिप के पास लेके आ रहा हूँ। फुट रिलीज करने का मतलब ये हुआ कि मैं वॉल के क्लोज ही रहूंगा और 1 इंच अवे फ्रॉम द वॉल जाने की कोशिश करूंगा। 1 इंच अवे मैं लगा के दिखाता हूँ, आप ट्राई करोगे। अलाइनमेंट बिगड़ा तो आपको 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड, जितना स्टेबल रहोगे उतना वॉल रिलीज करना इजी होगा, ठीक है? आज शायद वॉल रिलीज ना आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या, मेरा चेक पॉइंट क्या है, चेक पॉइंट क्या है मेरा, राइट? ध्यान से देखो, ये गए हम वॉल पे, शोल्डर को पूरा पुश किया, हिप को शोल्डर के ऊपर लिया, टोज रोल किया, ठीक है? पूरा वेट हाथ पे लूंगा मैं, वन लेग रिलीज, क्लोजर टू द वॉल, सेकेंड लेग। इसको इन दी एयर स्विच कर सकते हो, इन दी एयर, इन दी एयर स्विच कर सकते हो, इन दी एयर। होल्ड भी आएगा तो भी वॉल के पास ही हूं, मैं यहां नहीं आ रहा हूं। जब आप क्या कर रहे हो, आप जब यहां आते हो क्या होता है, ये खुल जाता है ऐसे, तो हमको वो नहीं करना है। जैसे ही आप पाँव को हिप के पास लोगे, बॉडी वेट शिफ्ट हो जाता है, हमको वहां नहीं आना, हमको वॉल के पास ही रहना है, ठीक है? कोशिश करें। जो कॉन्फिडेंट नहीं है 30 सेकेंड 40 सेकेंड का होल्ड ट्राई करो, जो कॉन्फिडेंट है लेग रिलीज करने की कोशिश करो। चलो
लेट्स गो। जश्न फरा 30 सेकंड गोल है हमारा। स्वीटी, गुरप्रीत, अलाइनमेंट सॉलिड चाहिए। राजेश जी, निशा, विनीता, लेग रिलीज करके दिखाओ। चलो, 1 एल्बो डिस्टेंस दोस्तों आइडल है। आइडल 1 एल्बो डिस्टेंस। थोड़ा दूर रह सकते हो, इजी है। थोड़ा पास रहोगे तो डिफिकल्ट होगा। चलो, बहुत बढ़िया गुरप्रीत। शोल्डर पुश करते रहो, नीज को नीचे आने दो, टोज रोल कर लो। वेरी गुड राजेश जी, बढ़िया है। थोड़ा सा और नीचे आने दो लेग को। निशा, खोल रहे हो लेग, क्या कर रहे हो? तो रिलीज करना था, नीज को पकड़ो। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, सबको होती है। चलो, लेग रिलीज। यस यस विनीता, अच्छा कोशिश है, अच्छी कोशिश है, अच्छी कोशिश कर रहे हो। रिलीज। चलो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कोई बात नहीं। अगेन, सबने नोटिस किया, सबसे अच्छी बात क्या है? इवन व्हेन शी वाज टैपिंग, हर अपर बॉडी वाज नॉट मूविंग। केवल लेग वॉल पे जा रहा था, वॉल से रिलीज हो रहा था, वॉल पे जा रहा था, वॉल से रिलीज होता था। अपर बॉडी पकड़ी हुई थी। सो शी इज वेरी रेडी टू गेट द होल्ड। शी इज एब्सोल्युटली रेडी। विनीता, कुछ नहीं करना है हमको, हर बार रिलीज करो और होल्ड करने की कोशिश करो, रिलीज करो और होल्ड करने की कोशिश करो। 5% एक्स्ट्रा वेट और लो विनीता हाथ की तरफ, आ जाएगा होल्ड। ठीक है, 5% एक्स्ट्रा वेट। चलो राजेश जी, आपकी बारी। जो लोग लेग रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एक एक बार स्पॉटलाइट पे चेक करते हैं। लास्ट राउंड दोस्तों, ये लास्ट राउंड है अपना। फिर थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे, और आपके कुछ क्वेश्चन है तो वो भी एड्रेस करते हैं। चलिए राजेश जी, लेग रिलीज करके दिखाएंगे, बैलेंस बना के दिखाएंगे। टोज रोल, टोज रोल, अंदर आने दो, अंदर आने दो, अंदर आने दो, टोज रोल। वेरी गुड वेरी गुड। शोल्डर भाग रहा है आगे, पकड़ के रखो, शोल्डर वॉल की तरफ बना के रखो। वेरी गुड, ये अच्छा है। चलो, 1 लेग रिलीज करो, बट क्लोज टू द वॉल, क्लोज टू द वॉल, डोंट गो अवे फ्रॉम द वॉल ना। नीज को नहीं मूव करना है। हाँ, चलो, बॉडी वेट शिफ्ट करो, बॉडी वेट शिफ्ट करो, फिंगर्स पे वेट लो, शोल्डर को नहीं आगे भागने दो, केवल वेट शिफ्ट करना है, शोल्डर वहीं रहेगा। हाँ, यस, गुड ट्राई। नाउ रिलीज द सेकंड लेग, कोशिश करो, कोशिश करो। हाँ, बॉल डी वॉल पे भाग रही है, फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, कोई बात नहीं। चलो, कौन जाएगा नेक्स्ट? निशा, निशा, निशा। स्वीटी, यू वांट टू गो? स्वीटी, यू शुड गो। चलो, लेट्स सी। स्वीटी, अगर अलाइनमेंट परफेक्ट है तो 1 लेग रिलीज करेंगे, और अगर फिर परफेक्ट रहेगा तो स्विच करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा क्लोज नहीं जाना बॉल के, डिफिकल्ट होगा। चलो, शोल्डर वॉल की तरफ पुश करके रखो, दोनों नीज को अंदर आने दो, नीचे आने दो। शोल्डर वॉल की तरफ पुश करो, नीज नीचे लेके जाओ, हिप अवे फ्रॉम द वॉल, हिप टुवर्ड्स द वॉल, हिप अवे फ्रॉम द वॉल, शोल्डर टुवर्ड्स द वॉल। यस, 1 2, पूरा वेट हाथ पे शिफ्ट करो। जब लेग रिलीज करो, शिफ्ट होना चाहिए बॉडी वेट हाथ की तरफ, फिंगर्स की तरफ। 3 4, हाथ से और प्रेस करो स्वीटी, एल्बो थोड़े थोड़े बेंड होते हैं, हाथ से और पुश करो। यस, यहां पे रहो। एंड 10, रेस्ट इट आउट, रिलैक्स, गुड जॉब। चलो निशा, लेट्स सी योर्स। इसको और अच्छा करना है अभी हमको स्वीटी, ये और अच्छा होगा, अभी लेग रिलीज वाला स्टेज नहीं है हमारा। वेरी गुड, बॉडी वेट शिफ्ट करो, और हिलने नहीं देना बॉडी को, हिलने नहीं देना, फिंगर्स पे वेट लो, धीरे से स्विच करके दिखाओ। हाँ, चलेगा, धीरे से शिफ्ट करो। सब जने प्लीज शोल्डर पे ध्यान देना, जब वो बॉडी वेट शिफ्ट करती है शोल्डर आगे भागता है, ये सब बहुत कॉमन है, ध्यान से देखो, ये मुझे भी बहुत टाइम लगा फिक्स करने में। जैसे ही मैं बॉडी वेट शिफ्ट करता हूँ, शोल्डर आगे भागता है, और आपको वो पकड़ के रखना पड़ेगा। यस निशा, सर ट्राइसेप्स बहुत ज्यादा पेन कर रहे हैं। अब वो तो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा, यू कैन नॉट हेल्प इट। धीरे जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मसाज करो, आइस बात लो, थोड़ा ऑयल वगैरह लगाओ, अच्छी रिकवरी लो, कूल डाउन स्ट्रेचेस लगाओ, शोल्डर ओपनिंग के स्ट्रेचेस लगाओ, उससे ठीक होगा। बट आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये सबको गो थ्रू करना ही है, मैंने भी किया है, अभी भी होता है, राइट? क्योंकि शोल्डर ओपनिंग है ना, पॉइंट क्या है मालूम है? अगेन, जो मैंने शुरू में बताया था, हम यहाँ स्ट्रांग फील करते हैं, हैंड स्टैंड के लिए आपको यहाँ चाहिए, टक के लिए आपको यहाँ स्ट्रांग होना है। तो जब आप वहां लेके जाओगे और पूरा बॉडी वेट रखोगे तो दुखेगा ना, ऑब्वियसली दुखेगा। जैसे जैसे स्ट्रांग होगा वैसे वैसे पेन भी कम होना शुरू हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है दोस्तों? सर ये बेल्ट से भी हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं? सॉरी,
बेल्ट से भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रेचेस है दोस्तों, अनगिनत स्ट्रेचेस है, राइट। बट हम लोग अभी केवल उन फ्यू स्ट्रेचेस पे ध्यान दे रहे हैं जो हमको कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दे पाए, राइट। तो इसलिए हम वो 5 स्ट्रेचेस फॉर शोल्डर, 5 फॉर हिप कर लेते हैं, ताकि राइट, अदरवाइज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रेचेस। अगर आप योगा कर रहे हैं, आपके ऑलरेडी टीचर्स हैं, तो वो आपको बहुत सारे स्ट्रेचेस बताएंगे, सबसे हेल्प होती है, राइट। कुछ खराब कुछ नहीं, कुछ गलत भी नहीं है दोस्तों, बट हमको एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट, उतना पता होना चाहिए हमको। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, वन लास्ट, आप अपनी पसंद का इधर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेडल, टक, अपनी पसंद का कोई सा भी हैंडस्टैंड लगा के दिखाएंगे मुझे। मैक्सिमम जिनको होल्ड की कोशिश करनी है, राजेश जी, निशा, विनीता, गुरप्रीत, स्वीटी, जिनको होल्ड लगाने की कोशिश करनी है वो होल्ड भी ट्राई करो, और जिनको केवल टाइम स्पेंड करना है, पिक द फेवरेट वर्जन जो हमने आज किया, इधर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेडल और टक, वो लगाना है, ठीक है, लास्ट वर्जन। चलो 30 सेकेंड, टेक पोजीशन दोस्तों, लास्ट हैंड ऑफ द डे। हाँ, स्पाइन टुवर्ड्स द वॉल भी चलेगा, बेली टुवर्ड्स द वॉल भी चलेगा। गोल ये है कि आपका आखिरी राउंड आपका बेस्ट राउंड ऑफ द डे हो। चलो चलो फराह, लास्ट राउंड, चलो, अरे लास्ट राउंड, प्लैंक लगाओ, सिंपल प्लैंक लगाओ, पार्टिसिपेट करना जरूरी है। वेरी गुड, पाँव सीधे गुरप्रीत, टाइम स्टार्टेड दोस्तों। हिप थोड़ा नीचे फरा, शोल्डर की लाइन में हिप, वेरी गुड। फिंगर्स पे वेट लेके, जो स्पाइन टुवर्ड्स द वॉल लगा रहे, फिंगर्स पे वेट लो और फिर लेग रिलीज करो। वेरी गुड निशा, बॉडी वेट फिंगर्स पे रखोगे तो होल्ड ज्यादा आएगा, जैसे ही पाँव रिलीज करते हो बॉडी वेट इधर आ जाता है। जश्न बहुत सुंदर लगाया, राजेश जी सुंदर है, स्वीटी अच्छा है, 10, 9, 8, विनीता गुड जॉब, 7, 6, 5, posterior tight गुरप्रीत, 3, यस गुरप्रीत, वेरी गुड जॉब, 2 and 1, रिलैक्स। आ जाइए सब जने आ जाइए। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, टेक अ स्मॉल ब्रेक, रिस्ट रोटेट कर लो, रेस्ट इट आउट, रिलैक्स। Everyone is feeling good. Can you hear me, guys? सुनाई दे रहा है? चलिए, रेस्ट इट आउट, शोल्डर रोटेशन, neck up and down. Keep your eyes open. Shoulder press. Look towards your left and hold. Same hand for the tricep. हाथ को जितना पीछे लेके जा सकते हो लेके जाओ, पुश करो, and look up. Same stretches on the other side. Look up, पीछे लेके जाओ, press, look up and hold. And come back. Big inhale, then your spine, and exhale. All right, feeling good, दोस्तों? चलिए, do you guys have any question? Any question? Any question? Any question? सर लास्ट में जो टक वाला बताया ना, उसमें बाई चांस अगर हम सामने फॉल करते हैं तो उस टाइम पे कैसे बैलेंस करना है, या तो फिर नहीं नहीं, धीरे। आपको थोड़ा थोड़ा वॉल से दूर रहो, आपको वहां तक आना ही नहीं है कि आप फॉल करो। फॉल कैसे करोगे? जब तक नी नहीं खुलेगा फॉल नहीं होगा, ध्यान से देखो। जब तक नी बेली की तरफ है, जब तक नी बेली की तरफ है, फॉल नहीं आएगा, फॉल नहीं आएगा। केवल जब आप नी खोलोगे, ऐसे करोगे, तभी फॉल आएगा, राइट। तो अभी आपको वहां जाने नहीं है, आपको तो नी को बेली की तरफ ही रखना है, बराबर। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? कितनी पता बार कैसे चले कि अभी कंप्लीट हम हैंडस्टैंड के लिए तैयार हैं? सॉरी सॉरी, कम अगेन, 1% एट अ टाइम। हम वॉल से प्रैक्टिस करते हैं ना, हाँ तो हाँ। कब ऐसा हमें पता चलेगा कि अभी हम वॉल्स, मतलब वॉल से हटके कर सकते हैं, कब रिस्क ले सकते हैं? एग्जैक्टली, ये अच्छा पॉइंट है। जब आपका वन लेग रिलीज करो आप, और जो वॉल वाला लेग है, वॉल वाला लेग है, फेदर टच हो, बिना अलाइनमेंट खराब किए अगर आप 30 सेकेंड होल्ड कर लेते हो, बिना अलाइनमेंट खराब किए 30 सेकेंड होल्ड आ गया, तब आप रेडी हो वॉल रिलीज करने के लिए। आपको कॉन्फिडेंटली वॉल रिलीज कर देना चाहिए, राइट। शुरू शुरू में फियर किक इन होगा, जैसे राजेश जी है, विनीता है, इनका सब कुछ रेडी है, बट दे आर वर्किंग ऑन, जब वॉल रिलीज करे ब्रेन स्लिप नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस और फियर और ये सब चीजों पे अभी इनका ज्यादा काम चल रहा है, बाकी बॉडी इज फुल रेडी टू रिलीज द बॉल। आइडली उनको भी 20 to 30 सेकेंड आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से उनके पास 30 सेकेंड हैंडस्टैंड है ऑलरेडी। उनका कॉन्फिडेंस खुद पे नहीं है, यू नो।
दैट्स द गेम, राइट? तो वो जब आप बिना अलाइनमेंट खराब किए केवल वॉल पे एक अंगूठा रख के 30 सेकेंड होल्ड कर लो, दैट्स द पॉइंट यू शुड नो कि मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। ठीक है? यस फरा, यू हैव अ क्वेश्चन? How many times a week should we practice this? इनिशियली एटलीस्ट अल्टरनेट डे, इवेंचुअली एवरी सिंगल डे, राइट? Jashna, you have any question? You're giving me so much confused look today. Jashna, how was your practice? Practice was good. I think my concern is मेरे को upper body का strength है. My wrists are paining a lot. तो इसके हम्म। लिए should I मतलब चाहिए strength training? मेरी upper body में वैसे ही strength थोड़ी कम है. मैं push-ups भी जैसे Is करने की gone. कोशिश कर रही थी. Wrist is और wrist दूसरा is कि gone. बॉडी वेट इज इट, ये क्या फैक्टर होता है कि अगर आपका वेट इस टाइम पे ज्यादा है तो इट्स डिफिकल्ट टू डू अ हैंडस्टैंड, एंड इट ऑब्वियसली इट हेल्प्स इफ यू हैव लेसर बॉडी वेट. ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर मेरा वेट के लिए इजी होगा, बहुत ऑब्वियस है। बट इससे कोई रिलेशन नहीं है कि कोई कोई पतला बंदा है तो वो जल्दी सीख लेगा या फिर थोड़ा सा हेल्दी सीखेगा। ये इंडिविजुअल स्ट्रेंथ की है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी अवेयरनेस कितनी है। मैंने हेल्दी बंदों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हुए देखा है और बहुत अच्छा बैलेंस है। इनफैक्ट मैं आपको अभी बता सकता हूँ, हैंडस्टैंड टीचर है, वन आर्म लगाते हैं, उनका बेली आता है, चबी बॉडी है, बट उनकी अवेयरनेस बहुत अच्छी है और वो सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको यहाँ स्ट्रांग फील नहीं होता, राइट? सो बॉडी टाइप इज नॉट अ फैक्टर। आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, आपकी अवेयरनेस कितनी है, आपका स्ट्रेंथ कितना है, आपकी मोबिलिटी कितनी है, ये फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? सेकेंड थिंग जो आपने रिस्ट का बोला, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, मुझे 5-6 साल हो गए, मैं ऐसों को जानता हूं जो 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी रिस्ट की डेली प्रैक्टिस करनी ही होती है। क्यों? क्योंकि पूरा वेट तो आपके हाथ में लेना है। अगर आप ये स्ट्रांग और ये फ्लेक्सिबल मोबाइल नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होना है, राइट? तो आप बिगिनिंग स्टेज पर हो, आपको भी प्रैक्टिस करनी है, इंटरमीडिएट वाले हो उनको करनी है, मैं एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे भी करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको रिस्ट का ध्यान रखना ही पड़ेगा। मेक सेंस? इसके आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी करनी है, मोबिलिटी एक्सरसाइज भी करनी है। कुछ एक्सरसाइज हमने आज की क्लास में करी है, बट आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको ढेर मिलेगी। बट मैंने आपको वो 3 प्राइमरी एक्सरसाइज बताई है जो मिस नहीं करनी है, राइट? बाकी आप ढेर सारी एक्सरसाइज, आपके पास अगर आप जिम जाते हो या फिर आपके पास वेट है, ब्लॉक रखो, ये वेट बहुत एक्सरसाइज है, ढेर मिलेगी, 100 एक्सरसाइजेस, कोई कमी नहीं है, राइट? अगर आप क्यूरियोसिटी वाइज गूगल पे सर्च करोगे, भतेरा ऑप्शन है, राइट? तो वो ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको डेली प्रैक्टिस में लेके आना है, वो आपका डिसिप्लिन है, राइट? इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है दोस्तों, आजकल डिसिप्लिन की बहुत कमी है, राइट? कहाँ गई हमारी वो स्वीटी पटेल, लास्ट प्रैक्टिस की थी लास्ट क्लास में, राइट? बीच से कुछ प्रैक्टिस ही नहीं किया। सो दैट इज द की, हमको एक रेगुलरिटी लेके आनी है, एक डिसिप्लिन हमारी प्रैक्टिस में लेके आना है, अगर हमको हैंडस्टैंड सीखना है। इट्स अ लॉन्ग कमिटमेंट दोस्तों, ये वैसा नहीं है कि आप एक क्लास में आ जाओ, आपको 1 ईयर 2 ईयर का कमिटमेंट देना पड़ेगा इसको। उसमें भी आप कितना फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस कर रहे हो वो गेम है। अगर आप महीने में 1 बार 2 बार क्लास में आ रहे हो, सेल्फ प्रैक्टिस में भी नहीं आ रहे हो, तो फिर वो आपका शौक है, वो आपका गोल नहीं है। अगर गोल बनाना है तो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। मेरा गोल है 5th पास करना, तो मेरे पास कोर्स है, उसका पर मंथ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हर 3 महीने में उसका टेस्ट हो रहा है, आप में जो हम सब बच्चे थे, आपके घर में अभी बच्चे थे, आपको पता है हाउ डज द सिलेबस वर्क। इसको वैसे ही अप्रोच करना पड़ेगा, ये सिलेबस है, मोबिलिटी में ये सीखना है, ये प्रैक्टिस करना है, स्ट्रेंथ में ये प्रैक्टिस करना है, कोर में ये प्रैक्टिस करना है, ये सब चीजें होनी चाहिए मेरी डेली लाइफ में, मेरी वीकली कैलेंडर्स में। मेक सेंस? You do it structurally, I guarantee you 3 months, 6 months, 9 months, you will see the progress. Make sense? चलिए दोस्तों, प्रेयर करें। बेनिफिट्स ऑफ हेडस्टैंड हैंडस्टैंड। सो दोनों के सेम है क्या? ये देखिए, कोई भी आसना है उसका प्राइमरी बेनिफिट क्या है? आपका ब्रीदिंग, आपका फोकस, आपका अटेंशन स्पैन इंप्रूव होता है। जब आप हैंडस्टैंड करते हो, इट्स अ क्लियर स्टेट ऑफ मेडिटेशन। अपने आप को 2 हाथ के ऊपर बैलेंस बना के रखना, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, इज अ प्योर ब्लिस मूवमेंट। और ये उतना ही अच्छा है कि आप क्रॉस लेग लगा के यहाँ पे आलती पालती लगा के रिलैक्स कर पाओ। मेरे लिए हैंडस्टैंड क्या है कि मैं जितना रिलैक्स यहाँ हूँ उतना ही हैंडस्टैंड में रहूं, तो मैंने कुछ सीखा है या फिर मैंने कुछ अच्छा किया है। अगर मैं वहां जाके डिफिकल्ट हूं और मेरा कॉन्स्टेंटली रीबैलेंस करने पे दिमाग बना हुआ है, दैट मीन्स आई एम नॉट देयर येट, राइट? अगर मैं यहाँ ऐसा बैठूं और मेरे मन में विचार आ रहे हैं और मैं अनईजी फील कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम येट टू रीच देयर।
सो बेनिफिट यही है कि अल्टीमेट स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस चाहिए हमको, राइट? और ये हमको चैलेंजिंग बनाता है, राइट? योगिक पर्सपेक्टिव तो क्या ही है, अब क्या ही हो जाएगा, आप एक हाथ पे बैलेंस बना के कौन सा अवार्ड मिल रहा है, कुछ नहीं है ऐसा, राइट? बट इट फील्स गुड, इट फील्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, इट पुशेस यू, इट चैलेंजेस यू, right? Day everyday practice mein, that's what we are looking for. We want to learn, we want to grow as a human being, as a species we want to grow and evolve, and this gives you the opportunity to do that. That's the key for it. आप हेड स्टैंड को छोड़ के कुछ और पकड़ लो, यू नो, माउंटेन चढ़ना है, माई क्लाइंबिंग करनी, दैट कैन बी योर कॉलिंग, राइट? कुड बी एनीथिंग, but ultimate goal is there only. Make sense? चलिए प्रे करें. Sit in a cross leg position. Big inhale. Exhale. Join your hands. Close your eyes. Repeat after me. We practice for happiness. We practice for health. We practice to make this world a better place. We practice for consciousness. We practice for creators and creations. We practice to breathe in the life within us. Rub your hand, create yogic energy between your palm, take this energy to your eyes, massage your face, massage your eyes, bow down to the Mother Earth. Try to touch your forehead on the floor, come back up, open your eyes, open your palm, and say thank you to everything without. Big smile on your face and relax. Thank you so much for calling dosto or joining the class. I hope you guys enjoyed it, learned something new, had a good morning, Sunday morning. I will see you in the next class. Keep practicing, dosto. And we have handstand courses, other programs, and weekly classes. So if you're looking for more classes and everything, please feel free to text me back. Otherwise, I will give you the recording of the class. Keep practicing. Follow the YouTube channel and other stuff. I'm trying to post as many tutorials and full follow along routines as well. So if you cannot join like the classes and all, just stay connected. That's the goal, right? I want to build a big community of handstand practitioners. So my goal is to get more and more people into this art form so that we can be a big family here. Make sense? Only weekly classes are there for handstand. You said there is course for handstand. Yeah, there is a course as well. I will share all the details of the course with you. Please go through it. If you have the time and availability and the commitment, please join it. Nishi, Gurpreet and Rajesh ji are already a part of it. They are doing great and we are practicing almost every day. So there are live classes, there are recorded classes, there is application, there is plenty of tutorials and tools and resources for you to improve your practice. If you're in for it, I will share all the details. But only One for last question. handstand also there is only like particular course. काय के लिए? Only for handstand also there is There particular. is a specific course on handstand. We talk about handstand, we eat about handstand, we sleep, we do almost everything about handstand only. So there it's the only job is to get the handstand, you know, nothing else. But if you notice, आप अगर handstand करोगे तो आपका strength improve होगा, आपका mobility improve होगा. It's not just handstand. In the process of learning handstand, you become so much better at so many asanas. राइट? सो एक बड़े पहाड़ को चढ़ने के लिए बहुत सारे छोटे हमारे क्लाइंब हो जाएंगे, यू नो. सो इफ यू कमिट योरसेल्फ फॉर हैंडस्टैंड, यू विल सर्टेनली गेट सो मेनी अदर थिंग्स अलोंग द वे, राइट? सो दैट्स द की. चलिए, enjoy your practice, enjoy your day, दोस्तों. Do text me for any queries and any inquiries. I will see you in the next class. Bye bye. Thank you, sir. Bye bye. Thank you. Thank you, sir.